Good morning, everyone. Thank you all for joining. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. So, guys, today there's a lot of news about the e-commerce, FMCG. Things are coming up. New data points are coming up. I appreciate. Many of you have sent me the news, so I will, appreciate. Keep the momentum going on, because this is the thing that will help. So I'm appreciated. Like, I got a lot of news today. So I will not say much from my end. Let's say I have not read the newspaper today. I was out. Now you are the guys who will tell me what happened. Okay. Now I will start with Kaustubh. Okay, since Kaustubh is on the call today. Kaustubh, you start with your, and then I will, tell all the names. If anyone wants to leave, or it's just for few minutes, you can just raise your hand so you can go ahead. It's not about me telling the sequence. If you are available, just let me know that, sir, I have to leave. I just want to talk. You can raise your hands. Okay. Yeah, Kaustubh. Yeah, sir. As you've already said, a lot of news about e-commerce. So I just also wanted to start from that. So I just wanted to explain why exactly the e-commerce has boomed. So like the GMV for the e-commerce because of this festive season has grown 27% year on year. And from this, quick commerce has a 12% share. So this is because of the GST boost. And because of this, tier 2 and tier 3 cities are the ones which are driving the sales. So like for Amazon, 70% of the customers were from smaller cities and premium segments, which we talk about a lot. So premium smartphones rose 30% year on year. And as I've earlier mentioned, quick commerce delivered 12% share from the GMV. And UPIs, because of this, hit a record high. This also impacted D2C brands, which, direct to consumer brands like Snitch and Uppercase, which saw 35 to 40% year-on-year growth. And going forward, a lot of analysts are saying they are expecting the positive outputs because this December quarter will be led by wedding season, travel, and gifting. So that's my news. Travel and gifting. Okay. Yes. Okay. So yeah, so on the Kaustubh part, Kaustubh is saying that tier 2. See, this is, we are learning, we are hearing this from a lot many news that tier 2 and tier 3s are driving sales. E-commerce, because of the festive season, obviously it is up. But what I can relate to this is there is something happening in the tier 2 and tier 3 cities. That's for sure. That there are a lot of lot of money which is being flown into tier 2, tier 3 cities. And when you talk about tourism, again, there's a lot of hotels which are coming up into tier 2 and tier 3 cities, and they are saying the demand is coming from that specific rural areas. So it's good. So I personally will like all the companies who have a rural exposure. All the companies. I will not say, like, I will not choose Oberoi currently, because Oberoi I know only makes houses in the tier 1 cities. I will choose the companies who have presence in tier 2 and tier 3 cities. There was something about the So another housing thing we industry. talked about was premiumization. Like people are shifting towards more premium products. So this was also highlighted because premium smartphones rose 30% year on year. Correct. I think Krinjal is there. Krinjal has written about the real estate. She is not there. So she has also, I will show her post. She has written good on the, sorry, not real estate. Okay. As you said, premium products, the beauty takes flight. The global personal line is set for global travel emerge with skincare. Now see you this, now she is not available today, but the way she has written it, what I can read. Now this is what Kaustubh said, that the demand is coming from premium products and traveling. Now in that traveling also beauty and personal care comes, because beauty and personal, obviously when you travel, you need to look good. And with that, there was one more point about the retail strategy. Quick, Ashutosh, anything on the quick? No, sorry. There was also on the retail part that on specifically on consumer part, fashion. So fashion is also growing because of this. I will say specifically everything what I will say that we should follow in the next 2 to 3 months coming is like which sectors. Tourism is related to beauty and products. So beauty and products, there is HUL in that. There is Marico. There is Trend. The Trend could
lift the premium skincare sales, expand margins, boost across border, and this sales are coming from tier 2 and tier 3 cities. Crazy. Again, there is a surge in travel. The surge in travel, so hotel industry. So Vignesh has written about the hotel industry. Sorry, the housing industry. Yeah, Vignesh, when you travel, can you talk about your news, Vignesh? Sir, but this news about sir macro and residential. So it's right. Just sorry, it was your macro. I'm so sorry, not you. Ashutosh, everyone. Ashutosh, anything on the quick commerce? Yes, sir. Yeah. So, sir, this is the same article which I have covered, which Hmm. Kaustubh had just now presented. So, I would like to add a few points on the same. During the festive sales, Blinkit growth almost surged 137% in Q2, which is the highest in the last 10 quarters, which is on the basis of net order value. Then Swiggy Instamart also grew more than 100% in Q2. Furthermore, I looked up into the quarterly update of Zomato, wherein the quick commerce revenue was more than the food delivery segment's revenue. This almost grew 8x year-on-year basis. But however, the EBITDA comes negative, sir. So this was the update. So I think Zomato's quick commerce revenue was more than the food delivery. Yes, yes, for the first time in this quarter, Q2. Oh, great. Okay. So quick commerce is growing. I think there was one more news about HUL having a digital presence of 8%. Who wrote that? Yes, sir. I delivered that news. Yeah, Shubham. Yeah, Shubham. Go ahead with that news. Yes, sir. So HUL has HUL presence in e-commerce is 8%, and just a minute. Sorry. Yeah. Yeah, HUL total digital sale contributes 8% of total revenue, but the market is led by Tata Consumer, which is total 15% in e-commerce. Also, there is a rivalry against HUL, which is L'Oreal India, which the specific numbers are not publicly disclosed. But the CEO of L'Oreal, which is Nicolas Hieronimus, noted that combination of quick commerce and traditional growth in consumer professional in India division has growth in double digit. In e-commerce also there is a growth which HUL contributing 2%. Again, Tata Commerce has lead in fast quick commerce, which is 50%. Dabur, which is 10%, Nestle, which is 9.1%, and Marico 8%. Godrej has 5%, and Godrej has targeting to 8 to 10% in 3 years. Also, also the experts suggest that by 2030, 60% of the consumption in India will be from e-commerce. Will be from e-commerce. Yeah. Yeah. So I think शिवम लिखा अच्छा थोड़ा तोड़ो ना, बहुत बड़ा लग रहा है तुम्हारा न्यूज़. थोड़ा उसको पैराग्राफ्स में डालो ना. एक ही प्राइस साथ में लिखा है. पैराग्राफ मतलब ब्रेक करो ना न्यूज़ की, कहाँ पे स्टॉप होना है. मुझे अगर रीड करना है तो वेयर शुड आई स्टॉप? Fine, Okay, maybe लिखा है, it's fine. But yeah, so yesterday Shubham only was asking me, sir, why are you more focused on Tata consumers? One of the reasons. Shubham, मिला तुमको reason? हाँ सर मिला लिंक हो रहा कि है? उसका चीजें हाँ. लिंक. हाँ. और सर एक और है, मैंने मतलब दो चार मतलब फेस्टिव सीजन में ही पढ़ा था. मैंने डिलीवर नहीं किया था न्यूज बिकॉज मैं घर पे नहीं था, मोबाइल से पढ़ता था न्यूज. तो वहां पे मैंने एक चीज नोटिस किया दैट इवन क्रेडिट कार्ड यूजेज हैज बीन सर्ज्ड. सो क्रेडिट कार्ड यूजेज एंड द मेनी मोर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर गिविंग क्रेडिट टू कंज्यूमर्स ड्यूरिंग द ऑनलाइन परचेसेस. सो उसकी वजह से भी क्विक कॉमर्स में ये एक सर्ज हमें देखने को मिल रहा है इन फेस्टिव सीजन. सो उसकी वजह से भी टाटा कंज्यूमर है वो compete करेगा कंपेयर टू अदर FMCG कंपनीज, बिकॉज अगर क्रेडिट मिलता है सो पीपल विल बाय टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मोर. करेक्ट. ऐसा नहीं है बट ठीक है. हाँ, ओवरऑल एवरीथिंग इज इन, मैं बोला एवरीथिंग इज इन ग्रोथ फेज. द एंटायर टूरिज्म स्पेंडिंग जिधर अभी तुम स्पेंड कर रहे हो, इट इज ग्रोइंग. एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स,
as Kaustubh mentioned कि e-commerce sales बढ़ रहे हैं, उसने बोला प्रीमियम सेगमेंट की बात की. Then someone said that premium segment, Kinjal was premium segment में beauty products भी आते हैं. तो तुमने बोला ब्यूटी अभी प्रीमियम सेगमेंट में ग्रोथ हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ई-कॉमर्स, एंड ई-कॉमर्स में देयर इज टाटा कंज्यूमर व्हिच इज द हाईएस्ट एवर रेवेन्यू. उसके पास प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी है टाटा कंज्यूमर के पास, प्लस ऑनलाइन प्रेजेंस है, प्लस इज द मार्केट लीडर, प्लस उसका एसेट टर्नओवर इज द लोएस्ट, मार्जिन सबसे लोएस्ट है अभी तक उसके. सो ना एवरीथिंग, मुझे तो आई फील लाइक सेलिंग वन ऑफ माय पोर्टफोलियोज एंड हैविंग टाटा कंज्यूमर्स इन माय, क्योंकि टाटा कंज्यूमर ऐसा स्टॉक है जो 1000 रुपए का 500 रुपया नहीं होने वाला, कुछ भी कर लो, इतना उसके पास एसेट्स है. हाँ, बट देयर कैन बी अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ टी, बट ये सब चीजें चल रही है, मुझे लग नहीं रहा है देयर शुड बी अ प्रॉब्लम. कितने लोगों ने टी पीना बंद कर दिया टी के प्राइसेस बढ़ गए तो? एनीवन? टी प्राइसेस बढ़ गए तो तुमने चाय पीना छोड़ दिया है? कोई है यहाँ पे जो पहले चाय पीने का अचानक से 4 रुपया 5 रुपया बढ़ गया टी में तो उन्होंने चाय पीना बंद कर दिया? क्वाइट क्वाइट ऑब्वियस है, नो वन. तुम पेरेंट्स को बोलो पैसा बढ़ गया चाय पीना छोड़ दो, बोले कि तू जा घर से बाहर, हमको पीने दे. ओके. एंड स्पेसिफिकली प्रीमियम प्रोडक्ट ग्रीन टी, तुम कितने भी महंगे हो ग्रीन टी तुम पियोगे. इंडिया इज आई विल से अ टी इकोनॉमी, कैन आई से दैट? मेजोरिटी तुम्हारे आसपास भी लोगों को कॉफी ज्यादा टी अच्छा लगता है, नॉट योर पर्सनल चॉइस, बस अप्रोक्सीमेट देख लेना. स्पेसिफिकली इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज, गांव में जाना कोई पीता है क्या गांव में कॉफी? ये सिर्फ अर्बन प्रोडक्ट है कॉफी. एनीवन? पर सर गांव में फिर गाँव में वो जो टी पीते हैं ना वो लोकल ब्रांड रहती है, जैसे मतलब वो जो भी है, टाटा. टी तो है, हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, लोकल ब्रांड होते तो अभी तुम्हारे पास पैसे है ना, तभी हम प्रीमियम ब्रांड्स पे जाओगे तुम, ये बात है, समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. मतलब ऐसा कुछ हो रहा है इंडस्ट्री में व्हिच इज ग्रोइंग. एंड इसमें ये नहीं, अभी यश हैज आल्सो रिटन, यश यू हैज आल्सो रिटन अबाउट एचयूएल. कैन यू टेल अबाउट योर न्यूज़, यश? Yes, sir. So Yeah. basically, like whatever, so Priya Nair is the new MD and CEO of HUL. यश तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा, यश कट हो रहा है. So अभी आ रहा है सर आवाज? कट हो रहा हेलो. है, मतलब आ रहा है. हाँ, एक तुम एक थोड़ा मिनट है सर. तुम थोड़े माइक से दूर हो ना, इसलिए बहुत पास से बात कर रहे हो. हेलो. हेलो, अभी बराबर है. यस. यस सर, तो बेसिकली सर एमडी जो नई एमडी है सीईओ प्रिया नायर फ्रॉम एचयूएल, उसने अगस्त में ज्वाइन किया. So basically her earlier focus was on emerging niche categories, but because the new GST structure is affecting 40% of the portfolio, so she's going back to the dual strategy where she is segmenting the customer universe into 3 categories. First is the premium consumers at the top end, power spenders in the middle, and democratizers in the last category. Okay. And the thing is, the most of the products are reduced by the price is reduced by 10% because it is affecting 40% of their portfolio. And sir, but the analysts say they either have to choose one, either they have to go for mass consumer consistent volume growth or higher gross margin through premium products. But HUL is defending their dual strategy by saying that they are also penetrating low penetration categories like body wash, जो खाली 2% ही लोग यूज करते हैं, और वेस्लिन का लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम वो लोग ने लॉन्च किया, वेस्लिन क्लाउड. So they have this dual strategy and they have segment customers into 3 segments. And still FMCG का जो spend है खाली 53 or $54 per capita ही है, despite higher income. So the analysts are saying that most of the savings due to the GST cut will go into debt repayment or purchase of durable products, consumer durable products. So there is a clash between what the analysts think and what HUL thinks. ओके, बट उनके ड्यूअल स्ट्रेटजी के बारे में तूने बताया नहीं. व्हाट आर दे फोकसिंग ऑन? So सी आई विल से, तुमने लिखा अच्छे से यस, बट तुम प्रेजेंट कर रहे हो ना तो समझ नहीं रहा है कि क्या है. अभी तुमने जो बोला हाँ, कि लोग को नहीं समझा कि तुमने, मुझे भी नहीं समझा इनफैक्ट कि तुमने क्या बोला है, पर जब मैं तुम्हारा पढ़ रहा हूँ तो मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है. so okay sir, मैं एक बार ट्राई करूँ और एक बार. हाँ, बेसिकली देखो 4 चीज ही बोलना है, 4 लाइन बोलो बस, दैट्स इट. पहले Okay, स्ट्रेटेजी fine, sir. क्या है, पोजिशनिंग क्या कर रहे हैं, वो किसने बोला क्या बोला वो जाने दो. Okay, और sir. उनके end So क्या है? like the GST rate cut is affecting 40% of the portfolio of. एक सेकंड, पहले हिंदी में बोलो, पहले हिंदी में बोलो. हाँ सर. बेसिक बोलो कि क्या बोल रहे हो. हाँ, क्या So पढ़ा तुमने GST एक्चुअल के बारे रेट में? कट जो है वो 40% पोर्टफोलियो को अफेक्ट कर रहा है.
So HUL is returning to that playbook where they were serving the mass as well as the premium customers. But with the new MD and हिंदी में बोलो ना पहले, हिंदी में हाँ हिंदी में बोलो ना पहले। हाँ, फिर और सर English। एमडी और जो नई एमडी सी है प्रिया नायर, वो बोल रहे हैं कि हम लोग डुअल स्ट्रैटेजी पे जाएंगे, जिधर हम लोग वॉल्यूम ग्रोथ के लिए भी जाएंगे जो मास प्रोडक्ट्स है, और हम लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे भी फोकस करेंगे। अर्लियर वो लोग का खाली फोकस पहले इमर्जिंग मार्केट कैटेगरीज जो रहती है, नीश कैटेगरीज, उस पे था, पर अभी वो दोनों पे काम करेंगे बिकॉज जीएसटी रेट कट अभी दोनों पे अफेक्ट कर रहा है। बट एनालिस्ट ऐसा बोल रहा है कि तुम दोनों पे नहीं कर सकते हो फोकस, क्योंकि जो भी सेविंग्स हो रहा है जीएसटी रेट कट से, वो आइदर डेट रीपेमेंट की तरफ जा रहा है, सेविंग्स की तरफ जा रहा है, एजुकेशन की तरफ जा रहा है, नहीं तो परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की तरफ जा रहा है। बट they are defending their strategy and they have also launched अभी ये जो Q2 वो लोग ने वेसलिन क्लाउड लॉन्च किया है, जो लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम है जो नॉर्मली मिलता नहीं है, और एक जो बॉडी वॉश है वो भी वो लोग ने लॉन्च किया जिसका खाली पेनिट्रेशन 2% है। और HUL ने अभी फर्दर वो लोग के कंज्यूमर यूनिवर्स को सेगमेंट किया है, पहले दो ही थे, एक प्रीमियम और एक मास। अभी कैसा है कि सबसे पहले प्रीमियमाइजर्स जो सबसे टॉप में, सेकेंड लेवल इज पावर स्पेंडर्स, और थर्ड है डेमोक्रेटिक यूजर्स जो लोअर एंड में है। और तो ये है सर। ओके, ये पे ना 2% बॉडी वॉश पेनिट्रेशन है HUL का, लोअर पेनिट्रेशन है कैटेगरी में। अच्छा, नाउ व्हाट एनालिस्ट आर सेइंग इन दिस इज दैट हाँ तुम ड्यूअल स्ट्रेटजी यूज नहीं कर सकते, तो व्हाट इज HUL डूइंग? अभी मैं कैन जस्ट गिव यू ब्रॉड वे। HUL इज इनटू 2 स्ट्रेटजीज नाउ, मोर प्रीमियम एंड तुम्हारे मास। तो HUL अभी तक मास में ही था, कभी प्रीमियम में गया नहीं था। तभी वो सिंस जीएसटी रेट कट हो रहा है, तो अज्यूमिंग कंज्यूमर्स के पास स्पेंडिंग पावर ज्यादा हो गई। अभी ये जो एनालिस्ट बोल रहे हैं ना, आई रिफ्रेम फ्रॉम देम कि मुझे लगता है ये एनालिस्ट लोग पागल है। इवन आई एम एन एनालिस्ट, मुझे लगता है मुझे मार्केट इनसे ज्यादा समझता है। मार्केट एज इन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। तो सोचो अभी मुझे अगर ये एनालिस्ट को चैलेंज करना होगा, मुझे लग रहा है ग्रोथ हो रहा है, तो मेरा एक ही क्वेश्चन होगा, ये तुम बोल रहे हो कंज्यूमर ड्यूरेबल में ग्रोथ आएगा, तुम ऐसे कितने एसीज लेते हो घर में? एक बार एसी लिया कितने बार चेंज करते हो? एक बार टीवी लिया कितने बार चेंज करते हो? अभी लेट्स से वी आर 36 पीपल ऑन द कॉल। 36 पीपल में तुमने सबने एक एक टीवी लिया आज, ठीक है? ओके, कितने टाइम में चेंज करोगे? 5 साल में एक बार या 5 साल में एक बार, करेक्ट? हाँ करेक्ट, तुम्हारे पास पैसे आए तुम ले रहे हो, बट व्हाट अबाउट द ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कितने टाइम में लोगे? मंथली सर। मंथली? जब भी खत्म होता है तभी। हाँ सर, बट अभी सॉरी सर, एनालिस्ट ये भी बोल रहा है कि जो बास्केट ऑफ एफएमसीजी एक्सपेंडिचर है टोटल बजट में, वो बहुत कम है, $53 to $54 ही है पर पर्सन, पर कैपिटा। सी तो दैट्स व्हाट ये अभी है ना, और अभी प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ लोग जा रहे हैं। ओके, तो ये तो मतलब ये तो हमारा एनालिस्ट का एक काम है ना कि हमें फ्यूचर फोकस करे। अभी 53 54 है, तो इसका मतलब ये रहने वाला है नहीं, क्योंकि अभी न्यूज भी आ रहे हैं दूसरे कि अभी जस्ट वो क्रिंजल का न्यूज था जहाँ पे वो बोले कि जब लोग घूमने जाते हैं, भले उस पर फोकस नहीं करते, बट प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे तो फोकस करते हैं। अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं ना, दे आर एनालिस्ट लोग यहाँ पे समराइज कर रहे हैं कि एफएमसीजी मतलब ग्रोसरीज हो गए, प्रीमियम प्रोडक्ट्स मतलब प्रीमियम टी हो गया, बट ऐसा नहीं है। ब्यूटी भी आया उसमें और प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी ऐड हो रहे हैं लोगों के पास, तो वो अभी यहाँ से बढ़ जाएगा। तो ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है? मुझे लग रहा है यहाँ से बढ़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि HUL को ही फायदा होगा, जो भी लोग ये पोर्टफोलियो में है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है, उनको सबको फायदा होने वाला है। अभी भले 53 54 है, तुमको क्या पता कम होने वाला है बढ़ने वाला है? तुम बताओ, यस तुम बताओ एज एन एनालिस्ट कि 53 54 है, एग्री, बढ़ेगा कम होगा यहाँ से? सर बट ये लोग ने लाइक जो टायर 2 टायर 3 सिटीज है, वो लोग ने डेट भी बहुत लिया है ना, तो वो लोग रीपेमेंट करेंगे, एजुकेशन पे डालेंगे अपने बच्चों को भेजने के लिए सिटीज में, मतलब वो भी एक हो सकता ये है। ऐसा बोलते हैं, बट मुझे बताओ तुम्हारे आसपास ये ना, पर एक डेटा बोलता है ऐसा करेंगे वो, बट ना अपने आसपास जस्ट जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, पूछो तुम्हारे पास पैसा जब बोनस आता है तो क्या डेट रिपेमेंट करते हैं? नहीं, हम भी नहीं बॉडी बॉडी वॉश तो कोई भी यूज नहीं करता है, लोग बॉडी वॉश पे फोकस कर रहे हैं। मुझे नहीं, तो अभी क्या होगा, दिस विल ग्रो इन द फ्यूचर, अभी नहीं होगा, अभी अचानक से कल से नहीं होगा। हाँ, बट आज आई कैन सी माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स, जब मैं उनके घर पे जाता हूँ तो ऐसा होता है ना कि अभी ना मेरे घर पे लेट्स से बॉडी वॉश है, आई हैव स्टार्टेड यूजिंग बॉडी वॉश, ओके, माय फ्रेंड कम्स एंड सी कि मैंने बॉडी वॉश यूज किया, मैं मेरे फैमिली के घर पे जाता हूँ तो उधर आजकल इसमें बॉडी वॉश ही होता है। बिकॉज वाई, आई विल टेल यू,
बिकॉज यूजिंग सोप से ना, see, तुम 4 लोग हो घर पे और तुम 4 लोग एक सोप यूज कर रहे हो, दैट इज अनहाइजीनिक, करेक्ट? या क्या यूज करोगे? अगर पैसे है तो ही बॉडी वॉश यूज करोगे, वरना तो करोगे नहीं। अभी मेरे पास पैसे है तो बॉडी वॉश कितने का आता है? 200 रुपया, 300 रुपया, करेक्ट? 200-300 रुपये का तुम लोन रीपेमेंट करने वाले हो, पैसा आया तो? मुझे नहीं लगता, आई डोंट फील इट। जितना मैंने लोगों को देखा भी, मैं आई बी विद स्टूडेंट्स, ओके, आई बी विद अराउंड 100 to 500 स्टूडेंट्स यंगर देन योर जनरेशन। उनका माइंडसेट मुझे पता है, इवन मेरे कजिन्स है, आई नो देयर माइंडसेट। पैसा आया तो पहले उड़ाना ही होता है, लोन सर रीपेमेंट मतलब कि वो तो फिर लाइफस्टाइल का हिस्सा हो जाता है, तो फिर वो हाँ, अपना लाइफस्टाइल थोड़ी डिग्रेड करेंगे लोन ठीक है, रिपेमेंट के लिए। करेक्ट। एंड तुम नहीं करते ना, इनफैक्ट तुम तो बढ़ाओगे, तुम शायद से और एक लोन लोगे उसके ऊपर, लोन सस्ता, मतलब अगर तुम्हारा इनकम बढ़ गया तो। Yes, अभी sir. आई विल टेल Even वन ऑफ, I have. सॉरी सर, आई मीन थोड़ा मैं डिसएग्री नहीं करता हूँ, बट सर अगर पैसा ज्यादा आएगा तो मैं लिवाइस का पैंट खरीदूंगा, मैं यूनाइटेड करेक्ट, कलर्स बेनेटॉन का टी शर्ट खरीदूंगा, मैं आईफोन लूंगा। मैं क्यों करेक्ट, बॉडी वॉश यूज करूंगा कि फेयरनेस नहीं क्रीम? नहीं, बॉडी अभी वो तो तुम्हारा है ना, अभी तुमको नहीं करना है, बट व्हाट इफ, वही मैं बोला ना कि घर पे अगर तुम हो, साबुन यूज कर रहे हो, 4 लोग हैं, तुम शायद से तुम्हारे पास पैसे, तुम बॉडी वॉश यूज कर लोगे। मैं नहीं बोल रहा तुम करोगे, बट जब तुम देखते हो लोगों को यूज करते, तुम भी करोगे। जब होटल जाते तो होता है क्या, वैसे होटल्स में बॉडी वॉश होता है या साबुन होता है? क्या होता है? बॉडी वॉश होता है बॉडी ज्यादा। वॉश। क्यों साबुन क्यों नहीं होता? इफ यू गो टू अ प्रीमियम होटल, क्या होता है उसमें? एंड कैन आई से प्रीमियम होटल्स का सेल्स बढ़ रहा हाँ, है ना? आया लिंक हुआ चीजें। मैं नहीं बोल रहा तुम यूज करोगे, बट वो लोग तो यूज करेंगे ना। मैं नहीं बोल रहा एचयूएल का ही यूज करेंगे, दूसरे कंपनीज भी है उसमें, बट कैटेगरी तो बढ़ रहा है। एंड बॉडी वॉश तो एक हो गया पार्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, सनस्क्रीन हो गए, वो मिनिमलिस्टिक के मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट क्रीम। अच्छे हैं, या जो भी मिनिमलिस्टिक नहीं, जो भी है प्रोडक्ट अच्छे हैं। हाँ मेरा सर, एक ऐसा है कि पहले हम लोग के पेरेंट्स साबु से ही बाल धोते थे, बॉडी धोते थे। बाद में हाँ, शैम्पू आया, जिससे हम लोग ने स्टार्ट किया कि correct, बॉडी के लिए सोप और बालों के लिए शैम्पू। तो वैसे हो सकता है कि हो आगे सकता जा। है ना। या इट कैन इट हैज, Sir, आई एम सीइंग, मेरे डैडी बोलते हैं आजकल कि अरे यार ये साबुन कैसे लगता है, मुझे ना बॉडी वॉश लेके दे ऋषभ। वो मेरे डैडी बोल रहे हैं अभी, शायद हम नहीं यूज कर रहे, बट मेरे डैडी बोल रहे हैं कि हाँ हम बॉडी वॉश, क्योंकि इट इज अपग्रेडेशन ऑफ योर लाइफस्टाइल, दैट्स इट। मोर यू सी अराउंड, तो मोर यू सी। अभी बहुत, तुम ना डीमार्ट जाओ, कभी कभी डीमार्ट जाओ और देखो बॉडी वॉश के कितने सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं, कितने सारे दिखते हैं। 1+1 फ्री, वो फियामा का आता रहता है, 1+1 फ्री। देखा होगा तुम, ध्यान दिया होगा तो, कितने सारे पियर्स के आए हैं, सिंथॉल के है, सर सीन ये इट। सर वो मेरे बियर्डो साथ का भी, भी है। मैंने भी ये नोटिस किया है कि मेरे जो भी कजिन्स है जो यंगर जनरेशन के, दे आर हाँ, 30s, इन देयर 30s, एंड उनकी न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट अभी ज्यादा है। तो उनके घर पे व्हेन आई विजिटेड, सबके बाथरूम में आई सॉ दैट वो बॉडी वॉश ही यूज कर बॉडी रहे हैं। वॉश, तो हाँ, उनको देख के ही मेरे पेरेंट्स कन्विंस हुए कि या वी शुड यूज बॉडी वॉश, इट इज मोर हाइजेनिक। वरना जो दादा दादी वो लोग के जनरेशन था, दे यूज टू, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर स्टिल यूजिंग द सोप, बट करेक्ट, पेरेंट्स है वो कन्विंस हो जा रहे हैं। तो अभी जो न्यूक्लियर, मतलब लाइक वी आर द नेक्स्ट जनरेशन टू लीड द हाउस होल्ड, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर कन्विंस दैट बॉडी वॉश इज बेटर। सो मेरे खुद के घर में बॉडी वॉश यही देख, किसी मतलब कजिन्स के घर में देख के ही हम लोग ने लेना स्टार्ट किया। सो इवन आई एग्री विद द पॉइंट दैट देख के बॉडी वॉश मैं का देख रहा हूँ, यूजेज। ये सब दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि हो रहा है। दैट इज व्हाई आई एम बुलिश ऑन दिस ऑल कंपनीज। वो फाइनेंशियल्स तो बाद में आ जाते हैं, मतलब ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड, फिगर आउट द कंपनी। शायद से एचयूएल नहीं है उसमें, एचयूएल के बॉडी वॉश नहीं दिखते। एग्जाम, ये बॉडी वॉश तो एक पार्ट हो गया, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स, प्रीमियमनेस। तो ये सब ना, ऐसा सब जाके तुम इंटरव्यू में बात करते हो। आई डिसएग्री विद द एनालिस्ट कि बोलते हैं खर्चे ना कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे हो रहे हैं और वो लोग डेट रिपेमेंट करेंगे। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बताओ मुझे। मेरे फैमिली में आई विल से, मेरे ब्रदर इन लॉ ने अभी लोन लिया है, उसको ना लोन मिल, बिकॉज इट वाज बिजनेस इनकम, उसको कम लोन मिल रहा था। व्हाट ही डिड इज, उसने म्यूचुअल फंड्स पे और लोन लिया जस्ट टू स्पेंड हायर अमाउंट। उसने म्यूचुअल फंड, उसके लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लिया है। तो ऐसा लोग कर रहे हैं, मतलब जस्ट फॉर, उसको घर लेना था नया, तो बस स्पेंडिंग पे स्पेंडिंग हो रहा है, एंड सर हो पर रहा आपको है। नहीं लग रहा है कि सर जीएसटी रेट कट से पैसा ज्यादा, लाइक मैं लिवाइस का जीन्स खरीदूंगा, 5,000 का जीन्स खरीद। लिवाइस तो महंगा हो गया ना, ओके। लिवाइस पे रेट कट अफोर्डेबल नहीं चीजों हुआ है। पे जीएसटी रेट कट आया ना, लग्जरी चीजों पे हाँ, तो कोई ओके उसका असर हुआ ओके। नहीं उतना। लग्जरी पे नहीं आया, बट ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है ना मेरे, बिकॉज ऑफ जीएसटी रेट कट है ना, नॉर्मल प्रोडक्ट, तुम्हारे पास डिस्पोजल इनकम बढ़ गया है, ओके, तुम जाके प्रीमियम प्रोडक्ट ले रहे हो, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है इनफैक्ट, व्हाट हाँ आई एम सर वो सीइंग। तो है।
बराबर। वही तुम जैसे एग्जांपल तुम्हारा इंश्योरेंस भर रहे थे, तुम इंश्योरेंस पे तुम्हारा जीएसटी कट हो गया, ठीक है, तुम्हारे 5-6 हजार बच गए, तुम क्या करोगे? तुम जाके नया जींस ले लोगे 5 हजार का, ठीक है ना, महंगा तो महंगा, मेरे तो बच रहे पैसे। तो ये हो रहा है, दिस इज ट्रेंड आई एम ऑब्जर्विंग अराउंड माय फ्रेंड्स, कजिन्स, फैमिली मेंबर्स। ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ स्पेसिफिकली कॉलेजेस में। मैं जब स्टूडेंट से मिलता हूँ तो मेरा उनका माइंडसेट मुझे समझ में आ रहा है, लोग क्या बात कर रहे हैं। मतलब दे आर सो बिहाइंड मनी, मतलब स्पेंडिंग। उनके सर मैं सबके एक्चुअली इंस्टाग्राम पे इस पे हूँ, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देख के मैं हमेशा इंस्टाग्राम उसके लिए स्क्रॉल करता हूँ कि लोग स्टेटस डालते हैं कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, कौन सा कपड़े पहन रहे हैं। आई तो एक्चुअली द नेक्स्ट जनरेशन तो लाइक मुझे सनस्क्रीन मॉइस्चराइजिंग क्रीम का कुछ कंसेप्ट मुझे भी इतना पता नहीं है, बट आई थिंक सो दे नो अ लॉट लाइक मॉइस्चराइजिंग क्रीम कैसे यूज करने का, सनस्क्रीन कैसे यूज करने का। तो मेरा एक कजिन है 10th स्टैंडर्ड में, ही टॉक्स अबाउट, अभी शूज लिया उसने 20 हजार का, या नाइकी का। मेरे को बोलता है भाई ज्यादा देखो, मैंने नाइकी एयर का शूज लिया। तो मैं मामा को पूछा, मतलब मामा का समझ गया मैं ना, पैसा बच रहा है। 20 हजार का शूज कौन पहनता है? मतलब मैंने तो आज तक नहीं है मेरे पास 20 हजार का शूज। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि, बट योर यंग जनरेशन का यही है कि कंसेप्ट स्पेंड, आज है उड़ाओ, लोन लो। आई वॉज हैविंग मेरे कोई फैमिली फ्रेंड में, वन ऑफ माई मतलब फैमिली फ्रेंड, शी केम टू माई हाउस सेइंग दैट मुझे इन्वेस्टमेंट सीखना है, कैसे करना है। तो मैंने, तूने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया? तूने, शी इज 27-28। नहीं, अभी उसकी मम्मी भी बोलती अभी ना उसने आईफोन लिया था, अभी जैसे आईफोन का ईएमआई खत्म हो गया है, तभी सोच रही हूँ मैं इन्वेस्ट करने। तब मैं मतलब 30 में मैं रिटायर हो गया, तुम क्या अभी तक इन्वेस्टमेंट चालू नहीं किया तुम लोगों ने? दिस इज व्हाट हैपेंस, एंड ये जनरेशन का यही प्रॉब्लम है। सो वो ठीक है, उनको कमाने दो, यू मेक मनी। अभी ठीक है, अभी थोड़ा प्रॉब्लम होगा। देयर आर आल्सो पीपल ना हु टेल्स मी दैट ऋषभ बाय अ हाउस, बाय लग्जरी आइटम्स। आई सेड नो, आई विल बाय अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट्स, मुझे लग्जरी में भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो ऐसा जो लोग कमा रहे हैं ना, पीपल हु आर सेविंग नाउ फॉर द फ्यूचर आर द वन हु आर मेकिंग मनी। पर रेस्ट ऑल तुम इंस्टाग्राम खोल के देख लेना, तुम्हारे सब फ्रेंड्स यही कर रहे हैं, फ्रेंड और फैमिली। सर उसका रीजन क्या है कि जैसा कि हमारा माँ बाप या फिर उनके माँ बाप ने ना थोड़ा सा वो पॉवर्टी वगैरह देखा है, इन लोग ने क्या सीधा ही मतलब कंफर्टेबल लाइफ देखी है, तो उनको इतना वो वैल्यू नहीं है उसका। नहीं होता वैल्यू, उनको लगता है ठीक है। एंड दे आर लाइक, इस पे लोन मिल रहा है ना, जैसे क्रेडिट कार्ड का स्पेंडिंग, किसी ने बात की, क्रेडिट कार्ड इजी अवेलेबिलिटी है, क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई। सर हाँ सर, वो वो क्रेडिट वगैरह साइकोलॉजिकली पे आप भी यूज करोगे ना फ्रिक्शन तो नहीं आता ना पॉइंट्स भी इसमें। मिलते हैं। सॉरी सॉरी, कौन बात कर रहा था? सॉरी, मीर। हाँ सर, वो साइकोलॉजिकल भी वो रहता है ना कि जब अपन हाथ से पैसा देते हैं तो थोड़ा लगता भी है कि पैसा गया, वो स्वाइप करते हैं तो वो फीलिंग नहीं आती। वो हाँ, विघ्नेश फीलिंग ने भी नहीं सही आती। बोला कि वो पॉइंट्स देते हैं, तो हमको स्पेंडिंग के लिए इंसेंटिवाइज कर रहे हैं वो। करेक्ट करेक्ट। सर ये विघ्नेश तुम सेम भी। ट्रेंड यूएसए में भी देखा गया था, लाइक सेम ही क्रेडिट कार्ड का यूजेज बढ़ा एंड द पीपल स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर सेविंग लेस। वेस्टर्न कंट्री में भी मतलब सेम साइकिल था, एंड वी आर आल्सो फॉलोइंग द सेम साइकिल कि सोशल मीडिया आया एंड पीपल आर मोर लाइक हिडोनिस्टिक ट्रेंड बढ़ रहा है कि दिखाना, मटेरियलिज्म, एंड द सेम साइकिल स्टार्टेड इन वेस्ट। सो वहां पे भी वही प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वो सेल ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द सेम थिंग। इतना सब तो हम बात वेस्ट करते हैं तो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट डेटा पॉइंट्स इसमें। अभी ये तुम्हारा काम यही है, अगर मैं एनालिस्ट हूं ना, मैं बोलूंगा कि मुझे ये सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, जाके स्टॉक ढूंढ के आओ मुझे, फाइंड मी द स्टॉक्स विद प्रॉपर रीजंस कि क्या है क्या नहीं, विद वैल्यूएशन, थोड़ा बहुत ऑफ द वैल्यूएशन। ऐसा नहीं कि स्टॉक ज्यादा ही बढ़ गया। तो यही मेरा तो, एज एन एनालिस्ट, अगर तुम मेरे सब मेरे कंपनी में काम कर रहे हो, तो मेरा यही फोकस है भाई, टूरिज्म रिटेल स्पेंडिंग में क्या हो रहा है मुझे बता। आई डोंट केयर अबाउट द सेक्टर, मुझे बता लोग कहाँ पे बेच रहे हैं। एंड वो ऑब्वियसली सेक्टर की बात करो तो उसके कॉम्पिटिशन की भी बात करनी है तुमको। हेलो या सर, जस्ट वांटेड टू ऐड ऑन इट। जो मैंने एचयूएल का Q2 पे रिपोर्ट बनाई थी ना, तो आई सॉ कि लाइक लास्ट क्वार्टर उन्होंने सेगमेंट्स के रेट गिराए थे। उन्होंने प्राइस पैक कम करे थे ताकि वो रूरल, जैसे आपने सर मेंशन भी कर रहे हैं ना, रूरल सेगमेंट ग्रो हो रहा है विच इज 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। सो दे ट्राई टू गेन वॉल्यूम इन रूरल एरियाज. So this quarter also their results are very low in their home care segment and personal beauty and well-being segment. पर्सनल, At the यस। same time, they are also launching premium products, uh, premium skincare products and premium body wash products to gain urban market, sir. So उन्होंने ये भी बताया कि like जो रूरल कंज्यूमर है ना सर, वो जेनरिक प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहा है, वेयर एज देयर HUL is launching sharper segment products
फॉर अर्बन कंज्यूमर्स। लाइक अर्बन कंज्यूमर्स को अब सर्टेन प्रोडक्ट, सर्टेन शैम्पू नहीं चाहिए, उनको एक सर्टेन शैम्पू या प्रोडक्ट चाहिए विद सर्टेन प्रॉपर्टीज। And it is because the urban consumer is getting more and more aware through social media or through Google, and they are becoming more and aware of themselves, of their medical needs. If some किसी को डैंड्रफ की दिक्कत है सर, किसी को स्किन की दिक्कत है, तो अर्लियर क्या होता था, वो एक ही साबुन यूज करते थे, एक ही बॉडी वॉश। अब क्या हुआ, देयर आर मेनी ऑप्शंस ऑफ कंपनीज ऑफरिंग मेडिकल सोप्स और टू हेल्प देम फॉर एंड सर मेजर इसका फायदा जो हो रहा है वो स्मॉल कंपनीज को ही हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल गमीज का ही ऑप्शन देके सर, तो लाइक मैं केमिकल का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, बट लाइक जिनको रिसीडिंग हेयरलाइन की दिक्कत होती है, तो सर उसकी गमीज आए थे, तो वो कंपनी ने रिपोर्ट किया था कि वो 100 टाइम्स हो गया था उनका प्रॉफिट गमी इन बेयर 1 करके। ईयर। हाँ, ओके सो मेरे हिसाब से ये है कि जो सर ट्रेंड्स जो सोशल मीडिया के थ्रू लोग देखते हैं, जो मतलब कंटेंट क्रिएटर्स डालते हैं, एंड उसके थ्रू ही अर्बन कंज्यूमर ड्रिवन है। तभी सर एचयूएल ने होम केयर सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम कर दिए ताकि वो वॉल्यूम गेन पाए, वेयर एज उन्होंने पर्सनल केयर में प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो बढ़ा दिया प्रीमियम सेगमेंट में, जिसने 20% से वो उनका रिजल्ट्स बढ़े हैं सर। That's it. वो तो अभी ठीक है, लो बेस है तो इसके लिए बड़ा नंबर दिखता है, बट ठीक है, हो रहा है, मतलब देयर आर थिंग्स विच आर गोइंग। तो ये सेम तुम बोल रहे हो ना, सेम टाटा कंज्यूमर्स भी यही बोल रहा है, मैरिको भी यही बोल रहा है। अभी ना हमारा अभी ऐसा कि तीनों कंपनी बोल रहा है, तो एक हमारा रिसर्च होना चाहिए कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है सबसे ज्यादा, लोग ले कौन से रहे, और सबसे किसको सबसे कम कंपटीशन है, मतलब अलग अलग सेगमेंट में। जैसे एचयूएल का ब्यूटी में है, टाटा का फूड्स में है, मैरिको का हेयर ऑयल में है, और वो हेल्दी फूड्स में है, वो अलग अलग हो रहा है, बट दिस इज हैपनिंग। ओके अनुराग, नेक्स्ट आल्सो अपॉर्चुनिटी इन मेंस ग्रूमिंग सेगमेंट ना सर। मेंस ग्रूमिंग में यस, तो मेंस ग्रूमिंग में सर मैरिको प्ले आउट कर रहा है एक्वेटिव बियर्डो Marico, yeah. ऑयल बॉडी वॉश, बट एक्चुअली इज ओनली फोकसिंग मींस ब्यूटी एंड वुमेन फोकसली। ये मेरे को थोड़ा मेन ग्रूमिंग थोड़ा अभी तक आई डोंट कन्विंस, क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग, आई एम नॉट कन्विंस येट। नहीं सर, वो एक इंडस्ट्री का एक वो डेटा था। नया ट्रेंड भी आ रहा है ना, ग्लास स्किन एंड ऑल दैट। हाँ, पता नहीं, आई हैव नॉट सीन, मतलब मेरे भाई बहन यूज नहीं कर रहे हैं कजिन्स, तो मेरा इतना ध्यान में नहीं आ रहा है, बिकॉज गाइज आर टिपिकली नॉट सो मच इनटू। हो रहा है, बढ़ रहा है, वो मतलब अवेयरनेस बढ़ रहा है, बट पता नहीं, मैं यूज नहीं कर रहा, तो आई एम सेइंग तो मिनॉक्सिडिल एंड वो सब का सेल्स भी बढ़ ही रहा है, बिकॉज हम लोग के पहले वाले जो जनरेशन, पापा वो लोग के जनरेशन, वहां पे तो ऐसा कोई था नहीं, और अभी तो लाइक 20s में जो मतलब गाइज है उनको थोड़ा रिसीडिंग रहता है, तो मिनॉक्सिडिल वो अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, वो तो मेल में ही होता है। सो वो अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, आई डोंट नो कौन सा कोई लिस्टेड नहीं, कंपनी कोई में नहीं है मिनॉक्सिडिल पे है, तो वो बिकॉज लिस्टेड कंपनी है तो फिर उसका ही मोनोपोली होगा। जैसे एग्जांपल एचयूएल बेच रहा है एंड टाटा है, कोई भी नहीं बेच रहा है, तो ओनली वो ही हम लोग ले सकते हैं। सो आई डोंट नो अगर कोई मिनॉक्सिडिल एज अ बेच मिनॉक्सिडिल रहा है। इज अ एपीआई, तो वो क्या है, मतलब इट्स अ रॉ मटेरियल, तो वो किसी में भी यूज हो सकता है, ऐसा है। नाम नहीं है मिनॉक्सिडिल, मिनॉक्सिडिल मतलब मैं बोल सकता हूँ वो एक इंग्रेडिएंट है, हाँ तो सर, वो ये भी बेसिकली मेंशन हुआ था, लाइक कंपनीज हु आर प्रमोटिंग दैट सर, लाइक मैन मैटर्स करके कंपनी है, उन्होंने सर क्या किया, पैकेजिंग में मेंशन किया था, तो आप गूगल पर सर्च करोगे तो पहले उन्हीं की कंपनी आएगी, बट देयर वर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, वो केमिकल उनमें इन्फ्यूज था, बट दे डिडंट प्रमोट इट। अब वो सर वो केमिकल का क्या था, मैं कहूँगा ट्रेंड चला था, लाइक पीपल आर मच मोर फोकस्ड ऑन दैट केमिकल की, इस प्रोडक्ट में ये है तो यही खरीदना है। सो उन्होंने पैकेजिंग इस तरह से करी थी कि दैट दे शोकेस्ड इट कि हमारे अंदर हमारे पास 5% मिनॉक्सिडिल है, दैट्स व्हाई इंग्रेडिएंट है। ये तो काफी छोटा मार्केट है, आई विल से मेन ग्रूमिंग के अभी के लिए दूर रहो, इट इज लाइक टॉकिंग अबाउट ईवीज, ठीक है। थोड़ा दूर रहना, अभी तक इसमें कुछ है नहीं था। तुम बताना, यहाँ पे 35 लोग है, कितना यूज करते हो मेन, जो भी है, जितने भी हो है, कितना यूज करते हो तुम, करते हो और क्या सर तुम में से मेंस कोई? ग्रूमिंग करके ना कुछ ऐसा अलग बहुत आ नहीं रहा है, जैसे वो पता है वो विमेंस का वो क्या बोलते हैं रेजर जो है उसको खाली पिंक कर देते थे, तो सर मैन की करेक्ट, स्किन कोई अलग थोड़ी, वो नॉर्मल फेस वॉश से वही मैन के स्किन पे भी चल मेंस जाता के है लिए इसके चल लिए। जाता है, यस। मेन नहीं करते इतना अभी, आई विल से ये कौन मेंस है ना, आई विल टॉक अबाउट व्हिच पीपल आर दिस आर वेरी रिच पीपल, अल्ट्रा लग्जरी या अल्ट्रा रिच पीपल, जिनको
ये सब चीजें करते हैं जिनको इनके पास बुरा टाइम होता है। तुम लोग को न्यूज लेटर लिखने का टाइम नहीं होता, ये सब करने का टाइम होता है तुमको? एक न्यूज लेटर लिखने वाले वो लिखते नहीं हो तुम? मुझे नहीं लगता तुम लोग कोई करते होगा। आई डोंट फील कि तुम लोग ने किसी ने भी यूज किया होगा। फिर किसी ने यूज किया तो अभी कोई ना कोई तो एक दो प्रोडक्ट के नाम बोल ही देते हैं। वही तुम लड़कियों की बात करो, तुम कोई प्रोडक्ट के नाम बोलो, दे विल नो द थर्ड प्रोडक्ट कि सर ये हम यूज नहीं करते, हम दूसरा यूज करते हैं। ऐसा नहीं है लड़कों में, नहीं है सर मतलब। लड़कों के लिए लग्जरी है ना, लड़कियों के लिए सर नेसेसिटी है हाँ उसके लिए। नेसेसिटी है, सर करेक्ट ऑल्सो करेक्ट। जो मेरी कजिन है उसने मुझे बोला था कि ट्राई करना, एंड एक वीक भी मैं ट्राई नहीं कर पाया बिकॉज सर इतना हेक्टिक रहता है मेट्रो सिटी में। लाइक इफ यू गो टू वर्क तो तुम्हें ट्रेन से ट्रैवल करना है, एंड इतना हेक्टिक रहता है कि वो मतलब ये सब समझ में ही नहीं कि सुबह उठ के ये अप्लाई करो वो अप्लाई करो, वो होता ही नहीं है इवन मेट्रो सिटीज में, क्योंकि टाइम नहीं रहता है। एंड दूसरा धूप और गर्मी वो सब इतना रहता है, चिपचिप रहता है, तो मैन का मोस्टली वही रहता है कि वो अवॉइड करते हैं। एंड फीमेल्स का ऐसा रहता है, जो मेरी वो कजिन है वो अपना मतलब उसका पहले ट्रैवलिंग मतलब उसका जो जॉब था, शी यूज टू गो टू वर्क बिकॉज उसका फोकस इतना रहता था ये सब करने में, बिकॉज शी यूज टू शूट रील्स एंड वो सब। सो उसने अपना वो जॉब छोड़ दिया एंड वर्क फ्रॉम होम ले लिया कहीं और, मतलब पूरा ये इंडस्ट्री चेंज कर दिया बिकॉज उसको उसका ज्यादा इम्पोर्टेंस था। एंड मैन में ऐसा नहीं रहता है कि मतलब इतना इम्पोर्टेंस है कि ये रहता है। तो वो भी एक चीज मैंने नोटिस किया है कि लाइफस्टाइल ही ऐसा है यहाँ पे मेट्रो सिटी में भी, कि वो जो बहुत ज्यादा रिच रहते हैं वही अफोर्ड कर पाते वही हैं ये। ऑफर कर सकते तो हैं बिकॉज और दे सर हैव द और एक चीज है, टाइम। जो अल्फा मेल का डेफिनेशन है वो भी चेंज होते रहता है ना। लाइक सर नाउ देयर आर सम, रीच नहीं सर, वेले वेले लोग ये सब करते रहते हैं। ऐसा नहीं हाँ है बट पहले लोग, हाँ लाइक ऐसा भी अभी देयर होता आर है, सम वो तो मैन है। हैव स्टार्टेड डूइंग मेकअप आल्सो। लाइक ऐसा नहीं कि गर्ल्स हाँ वाला मतलब मेकअप। वो लुक मैक्सिंग और वो सब आते रहता है ना कंटेंट, तो वो सब देख के भी लोग डोंट बिलीव। स्टार्ट कर। वो ना मैं जब शादी में जाता हूँ ना, अभी भी, अभी मेरे कजिन्स की एक शादी थी तो मेरी वाइफ मेकअप कर रही थी। मैं बता रही मेरे को भी लगा था ना, मैं थोड़ी जाके वो पार्लर में जाके 2,000 रुपया खर्चा करने वाला हूँ, ऐसा था। इन दैट सेंस आई विल टॉक अबाउट व्हाट अनुराग इज सेइंग। अनुराग, कैन यू टेल योर न्यूज? जस्ट Yes, sir. Yes, बोलने दो sir. फिर मैं बोलता हूँ। हाँ या So, sir, there was an article on the alcohol industry, all the future growth prospects of alcohol industry, and it is also a beneficiary of the premiumization that we're talking about. So the alcohol industry is expected to grow by 20% in Q3 FY26, driven by premium spirits consumption in tier 2 and tier 3 cities. Now, higher disposable income, increase in discretionary spending, and young and aspirational consumer base are said to be the key drivers of this growth. And in the recently concluded festive season, the alcohol industry has registered a double-digit growth led by smaller cities and developed markets. Now, this growth is expected to sustain going ahead in Q3, led by the prestige and above segment. So there are three companies. अनुराग थोड़ा स्लो स्लो, हाँ Okay, okay. And so there are three companies that are expected to be key beneficiaries of this premiumization trend. Uh, all these three companies are at different stages of their growth. So the first one is United Spirits, where the prestige and above category contributes 89% to the overall sales. So more or less, here the premiumization is played out. Then there is Radico Khaitan, where the prestige and above category contributes 69% to the overall sales. And they are innovating and getting into white spirits now to kind of sustain the growth rate. And lastly, there is Allied Blenders and Distillers, where the prestige and above category contributes 50% to the overall sales. Now, within the prestige and above category, the luxury, the companies are stressing on the luxury and premium category, which is the topmost category. Now, this category accounts for 30% of United Spirits FY25 sales and 10% of Radico Khaitan's FY25 sales. So we can see that with increasing disposable income and changing consumer preferences, people are increasingly preferring a luxury and premium alcohol, and that is set to benefit these three companies. तुमने ये जो लिखा है अनुराग हाँ in your news about हाँ हाँ. ये, what is this premium prestige and above? It is that this category, prestige and above category, Yes, prestige and above, वो तो grow हो रहा है. 89%. Yeah. So because United Spirits is the market leader, 89% of sales, not volumes. Volumes is somewhere कुछ 70-75% है उनका, हाँ. But it is the 89 market मतलब, leader, हाँ. क्योंकि ये prestige and above, how it is defined? So वो सबसे महंगा होता है कैटेगरी. I think ठीक है, above 2,500 रुपीस के ऊपर 750 ml. Then that becomes, हाँ हाँ. Anything is below that prestige. is popular, हाँ, popular है उसके नीचे. Okay.
And now what these companies are doing is they used to sell brown spirits, matlab brandy, whiskey and rum. But what is happening is the younger population, younger people like us who stay in urban areas, they are now increasingly consuming white spirits, which includes gin and vodka. तो वो बहुत हाँ, तो उसका शेयर बहुत कम है, तो वहाँ पे अभी फोकस कर रहे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला रहे हैं टू ग्रो. यस यस, तो ये क्या हुआ था यूनाइटेड स्पिरिट्स में, वो उनके पास वाइट स्पिरिट्स है ही नहीं कोई, इसके लिए रेडिको हाँ है कहते नहीं. हैं वाज हाँ द बिगर या मूवर. मैजिक मोमेंट्स एंड हाँ वो सब था वुड का. Because I will say I also drink white spirits. I like, अच्छा. but at times when I used to go for any function or वहाँ पे ना white spirits मिलने कम हो गए, ये रेडिको कहते हैं हमेशा वो पिच करते हैं, सर रेडिको कहते हैं का ले लो. अभी भी इनफैक्ट लास्ट वीकेंड ही आई वाज देयर एट वन ऑफ फंक्शन, तो मैं वहाँ पे गया, आई सेड गिव मी अ वन ऑफ, इज लाइक नो वी विल हैव रेडिको खेतन का ही है हमारे पास. मतलब क्या हो गया आपको? नहीं सर वी आर प्रमोटिंग रेडिको खेतन, वी आर नॉट कोई मैजिक मोमेंट्स. आई सेड आई डोंट वांट टू ड्रिंक ऑल दिस. तो वो आई थिंक रेडिको का प्रीमियम सेगमेंट में भी कोई आता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम नॉट दैट फैन. ऐसे आई यूज फॉर नॉर्मल जस्ट ड्रिंकिंग, तो मेरा भी ध्यान होता है कौन क्या पी रहा है. तो यूनाइटेड स्पिरिट दैट इज व्हाई आई डिडंट लाइक, क्योंकि आजकल मैं देखूं तो ना मेरे फ्रेंड्स फैमिली दे आर लाइकिंग दिस. अच्छा. तुम बोल रहे हो प्रेस्टीज ब्रांड है, बट आई एम नॉट श्योर. ये तो लोग मतलब लोगों को अल्ट्रा प्रेस्टीज चाहिए आजकल. लाइक हमको विस्की ये नहीं हाँ मिलता, तो लाइक उसके वो कुछ हाँ हाँ. दे वांट सिंगल मॉल्ट, और मे बी जॉनी वॉकर भी उनको सस्ता लगने लग गया आजकल. वो अच्छा. रामपुर है, आई थिंक रामपुर इज द वन हाँ व्हिच वो बहुत महंगा है, वो रेडिको का है ना. हाँ हाँ वो रेडिको का, महंगा है यस बहुत. रेडिको का है वो. सो कुछ वो उधर कुछ डॉलर में था अमाउंट, मैं उनका देख रहा था एनुअल रिपोर्ट में, बट वो इंडिया में बेचते हैं कि मतलब एक्सपोर्ट के लिए, मतलब इंडिया में भी है, एक्सपोर्ट्स भी है. आई हैव सीन, मतलब दे हैव कम अप विद कुछ लैक्स में आई रामपुर का थिंक एक उसका कुछ. कुछ 5 लाख का वो लोग ने निकाला था हाँ अभी. हाँ निकाला है राइट. करेक्ट. मतलब आई आई हैव वाज सीन शॉक्ड. पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ड्यूटी फ्री में रुकते हैं एंड वहां से लेके वापस जाते हैं. इज व्हाट दे, ऐसा सुना था मैंने, आई एम नॉट श्योर. मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि ऐसा ऐसा लोग कर रहे हैं फॉर दैट रामपुर विस्की. सर तो वही मैं बोल रहा था कि 8,250. क्या हुआ. सर वो 8,250 का आता है, 750 ml. हाँ वही है, पीपल आर लाइक, कहीं हाँ वो जो हाँ 5 लाख का बोल रहा था ना कोई, वो उसकी बात कर रहा था तो मैं. वो हाँ सर वो हाँ 5 लाख का 400 बॉटल ही पड़ा है वो लिमिटेड. कुछ वेरिएंट है उसका, सिंगल पॉइंट का ही कुछ था, मतलब ऐसा सिंगल उसमें मॉल्ट का मैं कुछ भी था. हाँ मुझे भी था सिग्नेचर रिजर्व सिंगल मॉल्ट हाँ विस्की. हाँ राइट 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 राइट. एंड मैंने जेंजीज, आर्टिकल आई कैन लिखा था सी उसके दैट. ऊपर. जेंजीज जो है, मतलब मेरा जो कजिन है, ही इज नाउ इन 12th स्टैंडर्ड, वो मेरे को बोलता है, मतलब सिंस आई वाज ड्रिंकिंग विस्की, नहीं मेरे को ना वोडका चाहिए. मतलब तेरे मम्मी को पूछ पहले, नहीं मम्मी को नहीं पूछना है, मैं दे दूंगा. और वो मम्मी को मत बोलो आप. मतलब ऐसा हो गया, दे आर लाइक. एंड वाइट स्पिरिट्स का एक प्रॉब्लम, एक दिस वन थिंग इज, उसका ना स्मेल नहीं आता है. ये भी मेरे भाई से अच्छा. सुना मैंने. बोला है कि स्मेल नहीं आता है, मम्मी को पता नहीं चलता है. विस्की पिया तो स्मेल आता है. मतलब वाह, मतलब आई कैन सी दिस ट्रेंड. वही है तो दिख रहा है वो कि ना. एंड उसके सब फ्रेंड्स, सब उसके फ्रेंड्स, इवन आई टॉक इन कॉलेजेस, उनका ये होता है वोडका या जिन. आजकल पता नहीं, मेरे भी एक दो फ्रेंड्स है जैसे ऋषभ, ये जिन ट्राई किया क्या, वो जिन ट्राई किया क्या. आई थिंक सफायर का काफी कुछ फेमस हो गया, इफ यू गाइस नो. यस सर. हाँ वो काफी आजकल चर्चे में है, क्योंकि वो बट बॉटल्स वो ब्लू दिखता बीरा है. तो बंद ही हो गया, पहले तो बहुत चलता था बीरा बीरा, अभी तो. ये वो तो अलग सर हो वो गया, हम जिन स्पिरिट्स की बात कर रहे हैं. जिन का सेल्स है कोविड में बहुत हाइक किया था, न्यूज आया था सर अभी 3-4 डेज पहले. जिन का सेल्स सर बहुत डाउन हो गया है, क्योंकि पीपल आर प्रेफरिंग इधर विस्की और इधर वोडका सर, और उसी में वोडका. मेजर वो आ रहे हैं, वेरिएंट्स आ रहे हैं. तो उसमें वेरिएंट, मतलब क्या है ना, आई विल टेल यू हाउ इज इट. आई वन माय ब्रदर इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वन ऑफ द कंपनीज में है, जो ओक स्मिथ का है ना, उसमें इज वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर. ही इज अ मार्केट हेलो. हेड ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा. हाँ पाजी. So in that, what he said is, gin based nowadays, the cocktails are all gin based. वहां से सेल्स हो रहा है जिन का. जिन हम ऐसा कंज्यूम नहीं हो रहा है, बट ऑल द कॉकटेल्स विच आर देयर ऑल आर जिन बेस्ड. तो मैंने ये तुम्हारा बराबर डाउट था आर्यन, कि लोग वोडका नहीं पी रहे हैं, जिन का स्मेल कम हो रहा है, बट जिन का जो ग्रोथ आ रहा है वो कॉकटेल बेस्ड से आ रहा And so they have mentioned Radico Khaitan. They mentioned in the annual report that white spirits is the next leg of growth. मतलब it is the fastest growing segment and कुछ 8% volume growth है उसमें and 11% value growth, 11 to 12%.
Sir, but do you think like India will switch from a whiskey consuming nation to some other nation, like a beer consuming nation or something like that? Because we are the largest consumers of whiskey in the world actually right now. Yes, sir, sorry. Am I audible? Yes, sir. Sorry, yeah. Sorry, Anurag, I missed it. White spirit, what were you saying? So white spirits is the fastest growing category, right? Right now, yes. With 8% growing at 8% volumes. So this is also one of the sectors. I was just writing these sectors over here, which can be in focus in the coming months. Travel tourism में there is also hotels which comes, premium hotels. फिर ब्यूटी एंड सो घूमने जाते हो तो मैं बोलूंगा तुम ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हो, तुम नए कपड़े लेते हो, एंड हाँ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू हैव लॉट ऑफ मनी. ये तुम्हारा अभी वही मैं बोल रहा था कि जैसे अगर मेरी वाइफ है ना स्पेंडिंग 5,000 10,000 इन द फॉर मेकअप्स, आई विल स्पेंड 5,000 का मेक, वो कोई विस्की का बोतल लेके आके आई कैन एंजॉय इन द मैरिज. ऐसा है या फॉर दैट फास्ट फूड चेन एज वेल. या So this is what men's are thinking. इसके लिए वो मुझे वो men grooming segment I don't like much because I don't think दो लोग कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे. दिख नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है. होगा तो ठीक है, I am not interested in that sector because मुझे दिख नहीं रहा है. So ये सब I will say now going forward in the next 2-3 months हमको इसी पे फोकस करना है. तो इसमें सेक्टर्स में कौन से राइट, FMCG भी आया, इसमें तुम्हारा फैशन भी आया, भी रिटेल बोलते हैं हम उसमें. तो रिटेल में एवरीथिंग कम्स, फैशन में क्लोथ्स भी आते हैं, फुटवेयर भी आते हैं. फुटवेयर का ज्यादा दिख नहीं रहा है बट प्रीमियम मार्केट बढ़ रहा है. क्लोथ्स एंड फुटवेयर ये बेसिकली होता है. फिर ज्वेलरीज भी आता है इसमें. ज्वेलरीज में टाइटन आता है एंड देयर इज कल्याण ज्वेलर्स. सोने का भाव तो बढ़ गया है. देयर इज इथॉस विच इज लग्जरी प्रोडक्ट ब्रांड फॉर वॉचेस. बट वॉचेस में क्या प्रॉब्लम है कि कंपटीशन नहीं है इतना. टाइटन है फॉर दैट सेंस. तनिष्क ज्वेलरी में देयर इज हाँ ये टाइटन एंड इथॉस है उसमें. तो एंड फैशन हो गया. अल्कोहल, अल्कोहल में अभी जस्ट ही हैज मेंशन ऑल दोस कंपनीज इन अल्कोहल. ये भी एक सेक्टर टू लुक एट. एंड ये होटल्स, स्पेसिफिकली होटल्स. होटल्स तो मतलब एक ये क्वार्टर है वहां तक ठीक है, बट इफ वी आर हैविंग इंटरव्यू लेटर ऑन तो फिर होटल्स एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा ना, बिकॉज फिर उसके बाद वो होटल्स डाउन में जाएगा अगर, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट होटल्स. तो उससे बेटर रहेगा कि हम लोग स्पेशलिटी रिटेल जो ये नहीं डाउन में जाएगा. वी ऑलवेज हैव टू टॉक अबाउट 5 years व्यू. whatever money I made in the stock market was after 5 years. मैंने ऐसा कभी कोई स्टॉक लिया और एक क्वार्टर में बढ़ गया, ऐसा आज तक नहीं हुआ. एंड हुआ होगा तो भी I didn't make much money on that. You don't get conviction unless you track. मतलब I will say I am holding Maruti from 2017, sorry 2022, 25 हुआ आज. 3 साल में उसमें ग्रोथ आया. 21 से रादर 4 साल. तो सर 4 years होटल्स में I में got a ऐसा, growth. होटल्स और टूरिज्म में ऐसा ग्रोथ है क्या? क्योंकि अभी तो फेस्टिव सीजन एंड वेडिंग सीजन वो सब चल रहा है तो है, बट वही लेटर ऑन आगे चल के है, क्योंकि फैशन वो सब में तो समझ में आ रहा है डिस्पोजेबल इनकम है एंड डिस्क्रिशनरी परचेज है, बट इसमें होटल्स और टूरिज्म में ऐसा लॉन्ग टर्म ग्रोथ है क्या ऐसा? इंडिगो का जाके सिर्फ कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रैक करना. इंडिगो देखो क्या बोलता है. इंडिगो इतने फ्लाइट्स खुले, कितने एयरपोर्ट्स खुले लास्ट 2-3 साल में इंडिया में, ट्रैक करना हो. कितने एयरपोर्ट्स खुले, कितने फ्लाइट्स ऐड हुए, कितने नए कंपनीज आ रहे हैं इंडिया में. अभी फ्लाइट सेक्टर, मैं इसके लिए मैंने एविएशन नहीं बोला क्योंकि एविएशन में एक ही इंडिगो है. जस्ट उसके कॉन्फ्रेंस कॉल में स्पाइस जेट भी है, एयर आकाशा भी अभी वो लिस्ट होने वाला है. वो तो उनके लेकिन जाके थोड़ा फिर इंडिया. डिफिकल्ट भी है ना सर एविएशन हाँ ट्रैक वो करना. इसके लिए एविएशन सेक्टर ट्रैक नहीं करना है मुझे. एविएशन ट्रैक नहीं, मुझे एविएशन में जो हो रहा है उस पे मैं ये सब पे इम्पैक्ट करूंगा कि उसके होटल्स पे कैसे इम्पैक्ट होगा, फैशन पे कैसे इम्पैक्ट होगा. कि एविएशन करो तो एविएशन किसके लिए हो रहा है? इज इट बिकॉज ऑफ फैशन, सॉरी इज इट बिकॉज ऑफ टूरिज्म, इज इट कॉर्पोरेट टूरिज्म, इज इट लीजर टूरिज्म? तो जितना हम डेटा दिख रहे हैं लीजर टूरिज्म ही ज्यादा दिख रहा है, और कॉर्पोरेट भी बढ़ ही गया है.
आजकल कॉर्पोरेट टूरिज्म भी काफी बढ़ गया है। मेरे वाइफ के कॉलेज ऑफिस में जो लोग हैं चार्टर्ड फ्लाइट से आते जाते हैं, इतना पैसा आ गया लोगों के पास। मतलब उस दिन उनको बुक किया था तो उनके कोई यूएस से लोग आए चार्टर्ड फ्लाइट में आए। नाउ क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी विच इज, तो एंड फिर इनका बोनस का टाइम आ जाए तो बोनस देते नहीं है, बट हाँ बाकी सबको ये मजे करते। फिर उनके भी जो लोग थे जो यूएस गए थे सबको बिजनेस क्लास में दिया था। व्हाट इट सीम्स दैट अभी तुम बिजनेस क्लास से जब जाओगे तो ऑब्वियसली 100 रुपए वाला टी शर्ट पहन के तो जाओगे नहीं, करेक्ट? मतलब तुम नहीं जा रहे बिजनेस क्लास है, ऑफिस तुमको भेज रही है, जाओगे क्या? वो है ही ना ऐसा। तुम्हारे 5 स्टार होटल में कुछ रखा है तुम्हारा सबमिट, क्या करोगे? चप्पल सैंडल्स पहन के जाओगे? नो सर, प्रीमियम फॉर्मल शूज अच्छा है। प्रीमियम ऑब्वियसली ब्रांड नॉट, का पहन के जाएंगे। ऑब्वियसली नॉट। और वो तुम लोगे नहीं, होगा तभी तुम्हारे पास लोगे क्योंकि उधर जाना है। हाँ सर, हाँ, फ्लाइट का शादी खर्चा तो में बच वही जाएगा। होता है। क्या हुआ? सर फ्लाइट का खर्चा बच जाएगा, वो तो कंपनी पे कर रहा है, तो अपना कंपनी स्पेंड फैशन और क्लोथ्स पे हो। हाँ हाँ, वही शादी में भी वही रहता है, किसी अच्छे के यहाँ से इनविटेशन आता है तो कपड़े खरीदने पड़ते हैं कि वहां जाना है करके। करेक्ट। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग द एंटायर, वो दिख रहा है। मतलब डेटा स्पेसिफिक इतनी बात हो रही है इंडस्ट्री में, न्यूज में हर दिन यही आ रहा है, हर दिन इसी की बात है। बट नहीं, हम जाके डिफेंस ट्रैक करेंगे क्योंकि डिफेंस में ग्रोथ हो रहा है ना। तो ये होता है। मतलब सर मैं नहीं बोल रहा बाकी सेक्टर्स ग्रो नहीं होंगे, मेरा फोकस इस पे है। बाकी सेक्टर्स में अपने 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 ग्रोथ पर्सपेक्टिव होता है, बट मुझे नहीं समझ रहा, मुझे ये समझ रहा है। आई टेल यू, उसने एक मैंने पॉडकास्ट सुन रहा था किसी का, ही सेड दैट शाहरुख खान कैन ऑल्सो, उसके पास इतना पैसा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता था ना वो भी, उसमें भी तो पैसा कमा ही सकता था। बट वॉट ही चूज टू इन्वेस्ट इन हिज ओन बिजनेस, मतलब ओन बिजनेस एज इन मूवी बिजनेस में, क्योंकि उसको पता था मूवीज कैसे बनते हैं, उसका क्या होता है, कैसे मार्केट होता है, बिकॉज ही वॉज देयर इन द मूवी इंडस्ट्री। पैसे बनाने को तो तुम कहाँ से भी बना सकते हो, स्टॉक मार्केट में पैसे बच समझता है क्या तुमको? डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो दिस थिंग्स ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमको जो समझता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डिफेंस में ग्रोथ नहीं है उसमें ग्रोथ होगा, बट मुझे नहीं समझ रहा है। इट इज जस्ट लाइक सेइंग इफ रोनाल्डो इज मेकिंग मोर मनी इन फुटबॉल, सो कल से विराट कोहली भी फुटबॉल खेलना चालू करे क्योंकि उधर बहुत पैसा मिल रहा है। ऐसा होता है क्या? जो चीज तुमको समझती है, एंड डोंट गो बिहाइंड मनी। मैं ये बोलता हूँ, डोंट गो बिहाइंड स्टॉक मूवमेंट कि सर मैंने इतना डाल के इतना कमाया, वो सब शॉर्ट लिव्ड होता है। तुम बोलो सर, जैसे मैं आज बोल पाता हूँ कि मैंने इतना डाला था, इतना कमाया और मैं रिटायर हो गया, ऐसा जब तुम वो कन्विक्शन आएगा तुम्हारे पास, दैट टाइम यू बिकम एन एनालिस्ट। फिर तुमको ना ये सब एनालिस्ट जो बोल रहे हैं उसकी सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। टुडे आई डोंट लिसन टू वन एनी ऑफ माय फ्रेंड्स। वो बोलते हैं ऋषभ एमसीएक्स इधर का इतना का उतना हो गया, बोल रहा है मुझे, हमने लिया था 700 करोड़ का लिया था, 7,000 करोड़ हो गया। मैं लग ग्रेट, तुमने क्या किया उसमें? तुमने कितना बनाया? हाँ मैंने भी बनाया पैसे। अरे तो नौकरी क्यों कर रहा है फिर? तो ये होता है, ये बात होता है, मैंने बोला था, मैंने ये किया था। तो इट इज नेवर ऑलवेज कंजम्पशन। जो बोलते हैं रिसर्च ऐसा करोगे तो रिसर्च करने में मजा आएगा, या यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली रिसर्च इज। वरना तुम बोलोगे सर पैसे कमाना है, स्टॉक ग्रोथ, मेरा स्टॉक चल गया, मेरा स्टॉक कम हो गया, गिर रहा है गिरने दो स्टॉक। आई एम कन्विंस कि ये इधर से आगे ही जाने वाला है। होता है थोड़े बहुत क्वार्टर्स खराब होते हैं कंपनीज में, आई कैन ऑल्सो सी कि देयर आर क्वार्टर्स विच आर विच डजंट गो एज पर योर अंडरस्टैंडिंग या एज पर योर रिसर्च। लेट्स से मार्केट गिर गया कल, तो ये जो मैं जब बड़े लोगों से बात करना, व्हेन आई वाज टॉकिंग विद द सीआईओ, मार्केट क्रैश्ड, ओके लेट्स से आज भी 20% मार्केट क्रैश होता है, तुमने जो भी स्टॉक लिए थे गिर गए, तो ना मुझे बताओ ये जब स्टॉक डिस्काउंट में मिल रहे हैं, विच इज द स्टॉक विच इज योर गो थ्रू स्टॉक? मुझे अगर बोले आज मार्केट गिरता है तो टाटा कंज्यूमर में फर्स्ट आई विल इन्वेस्ट। दूसरा दूसरा एनीवन? और कुछ तुमको लगता है कुछ? अभी अभी जो हमने बात टाइटन की इसका सर मेरे को टाइटन टाइटन, ओके दिस इज योर ओन एनालिसिस, प्रूफ करो क्यों है वो, वही वही प्रूफ करना है तुमको, क्यों? डेटा डेटा को लेके ऐसा है। एंड जब बोलते हो एक स्टॉक बोलते हो टाटा कंज्यूमर्स, तो बी प्रिपेयर फॉर अ फॉलो अप क्वेश्चन, एचयूएल क्यों नहीं, मैरिको क्यों नहीं, डाबर क्यों नहीं? इसके लिए मैं बोलता हूँ फॉलो द सेक्टर, क्योंकि यू विल गेट अ फॉलो अप क्वेश्चन।
सर बट क्योंकि इंडिया टूरिज्म सेक्टर में मेरा एक और काउंटर पॉइंट ये है कि जब भी मैं सोशल मीडिया या कोई भी ऐप यूज करता हूँ तो उसमें मैंने एक चीज नोटिस की है कुछ मंथ से कि जो फॉरेनर्स है जो टूरिस्ट है यहाँ पे वो इंडिया को काफी डिफेम कर रहे हैं और इंडिया का मतलब एज इन टूरिज्म में इंडिया का नाम ऐसे खराब हो रहा है कि यहाँ पे क्राइम रेट ज्यादा है, रेसिज्म ज्यादा है, नहीं ऑब्जेक्टिफाई किधर, ज्यादा करते इंडिया में तो हैं। रेसिज्म है ही नहीं। नहीं मतलब रेसिज्म इन द सेंस इफ कोई वाइट पर्सन है तो उसको एज ए ऑब्जेक्ट देखेंगे एंड वो सब चीज मैंने यूट्यूब पे बहुत ज्यादा देखी है कि यार यहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं है, इंडियंस हाइजीनिक नहीं होते हाँ हैं, वो मतलब तो एज इन इंडिया का बहुत बैकवर्ड जो हाइजीन नहीं है वैसा एक स्टीरियोटाइप हो गया है। सो मुझे लगता है जो एविएशन है वो कॉरपोरेट के लिए या बिजनेस के लिए उसके लिए मे बी एस्टेब्लिश हुआ होगा बट टूरिज्म तो एज इन मतलब आई डोंट नो, आई कैन बी रॉन्ग बट ये तो मैंने नोटिस किया है कि इंडिया का एज एन नहीं तो नेगेटिव। ये सब ठीक है, डेटा तो तुमको डेटा पॉइंट्स में बात करना है कि कितने टूरिस्ट इंडिया में आए, वो तुम बट सर देखोगे उनका डेटा। तो वॉल्यूम ही नहीं है उतना। वैसे भी वो फॉरेन से इतने लोग यहाँ पे इंडिया पे नहीं घूमने आते, के लिए इतने सारे लोग नहीं आते, इंडिया के नहीं लोग ही आते अंदर हैं अंदर घूम रहे हैं। इंडिया, वरना अभी हो रहा है, वरना मेरे तुम देखोगे ना डेटा पॉइंट्स तो अभी हो रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ अयोध्या, पहले तो था अयोध्या, उसके बाद था द कनेक्टिविटी इन इंडिया इज इम्प्रूविंग, नो, एयरपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग, तुमको हर एक सिटी में जाके एयरपोर्ट मिल रहा है आजकल, फ्लाइट्स आ रहे हैं वहां से, इंडिगो इज लाइक एक्सपांडिंग लाइक क्रेजी, अब यहाँ से सीधा यूरोप डायरेक्ट फ्लाइट्स है। मतलब ऐसा भी है, ये टूरिज्म ऐसा भी है ना कि इंडियंस जो बाहर गए वो वापस आ रहे हैं घूमने को और वापस जा रहे हैं, ऐसा And माय sir, सिस्टम इज बाकी दैट। सर वो सर यूरोप मेरे के तो जो अंकल आते थे भी खाली ताजमहल देख के चले जाते हैं बस, और तो कुछ इंडिया में देखते नहीं थे, खाली ताजमहल के साथ फोटो खिंचा के चले हाँ जाते थे। सर करेक्ट। मेरे अंकल भी इंडिया में आए थे आफ्टर 14 years, बट हम्म ही आल्सो फेल्ट द सेम थिंग एंड ही सेड आई विल नेवर कम बैक इन इंडिया, बिकॉज वो यहाँ पे आए थे, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी, उनका मतलब वो मतलब फॉर देम क्लेanलीनेस इज एवरीथिंग, हम्म मतलब वो बोलते हैं यहाँ पे टॉक्सिक मोल्ड वगैरह, इफ एनीवन इज ट्रैकिंग एनी हेल्थ केयर इंडस्ट्री दे मस्ट नो अबाउट दैट, मोल्ड वगैरह बोलते हैं यहाँ पे इंडिया के हर कॉर्नर में रहता है, और वो हम्म मोल्ड जो रहता है वो स्मॉल क्वांटिटी में भी नहीं रहता है, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्वांटिटी में रहता है, सो व्हाट्स नॉर्मल फॉर अस इट्स इन एक्सट्रीम लेवल फॉर देम, और वो तो यहाँ पे आते मोल्ड हो का तबीयत खराब हो जाती है, मतलब पेट दुखने लग जाता है, एंड करेक्ट। इट्स ऑल्सो लाइक, मतलब मुंबई में थे तो मुंबई का बोलते पोल्यूशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का है, पोल्यूशन तो सस्टेनेबल ही नहीं है, तो बाहर निकलते थे छींकने खांसने लग जाते थे, तो मतलब इट्स नॉट मेंट फॉर देम आइडियली, सो इंडिया में क्या बढ़ रहा है ना, or actually, to be honest, he's an Indian. He have born and brought up in India, but since last 25 years, he's in US. And this time he came in India after 14 years. So despite being an Indian, he's saying he's having that sort of view of India. वही वो तो मीर was मतलब right ना, टिपिकल इंडिया जो में अमेरिकन है उन लोग का फिर क्या व्यू होएगा? नहीं, इंडिया इज नॉट अ टूरिज्म अट्रैक्टिव कंट्री, इंडिया में टूरिज्म वैसे भी बाहर से नहीं आते लोग, इंडिया में ही घूमते हैं, अभी अभी हो रहा है, इट इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ मेजरली, तो मैंने सुना है कि ये मतलब मैंने जितना पढ़ा है, आई थिंक दैट मेजरली जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है ना वो बढ़ रहा है, योगा जहाँ पे होता है इंडिया में, यस सर, या अभी फिर ये सर वो सर अपन ने स्पिरिचुअल डिस्कस किया था ना सर रिचुअल्स वाले, अयोध्या, हाँ So India is the number प्रयागराज one और spiritual वाराणसी वगैरह tourism में। because like for example Steve Jobs, Mark Zuckerberg वो गए थे नीम करोली बाबा टेम्पल, वैसे करेक्ट काफी करेक्ट हाँ examples है where big celebrities came to India and converted into Hinduism or went to particular temple to seek करेक्ट answers. So करेक्ट करेक्ट, like ये बढ़ रहे हैं। like सर India is also kind of saying this that we are the land of civilization, the first like, हाँ तो वो तो रहने ही वाला हाँ, है सर स्पिरिचुअल टूरिज्म तो। तो वही हो रहा है, तो वो बढ़ रहा है क्योंकि बिकॉज थोड़े बहुत उधर जो जगह थे ना, वो उधर जैसे बोल रहे ना, ये तुम्हारे होटल्स बोल रहे कि हम लोग वो एरिया में सर होटल्स वो खोलेंगे, तो वो इंडियंस होटल थोड़ी को फाइव हाँ स्टार में जाने सर, वाले हैं। होटल्स ही वो कर रहे हैं सर, होटल्स एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं, लाइक दे आर हाँ एडिंग पूल, कसिनोज, करेक्ट रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, और वही सर न्यूज आ रहा है कि कंज्यूमर आर स्टेइंग मोर इन होटल्स एंड दे आर मोर इन्वॉल्विंग इन सच एक्टिविटीज सर, इससे वो होटल स्टेज बढ़ रहे हैं, प्लस सर लास्ट 3 days अगो एक न्यूज आया था कि डाइनेंस का भी 30% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, average करेक्ट spending of an Indian, and UPI transactions in restaurant has also grown by 34% year on year. So dine-ins, urban consumers are more focused toward dine-ins, and इसी वजह से सर वो लास्ट वीक न्यूज आया था ना सर, मैंने आपको बताया था पापा जोन्स का, तो सर इसी वजह से इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आ रहे हैं एज दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट अर्बन कंज्यूमर आर स्पेंडिंग मोर टुवर्ड्स लीजर एक्टिविटीज सर। लीजर एक्टिविटी, यस यस, तो ये दिस इज, देखिए ओवरऑल आई थिंक दैट वी शुड ट्रैक दिस सेक्टर्स गोइंग अहेड,
अभी अभी जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स होंगे, रिजल्ट्स आएंगे, तो बस एक बार नंबर्स पंच करके रखना. इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड कि कौन से स्टॉक्स पे हमको फोकस करना है. सर So I think just ये we'll take मैंने a last news, guys. I think we have. Sorry, Mir. Can take a मैंने last सर news. मैंने जो न्यूज हाँ क्या सर हुआ? मैंने न्यूज भेजा था ना, एक बार मैं क्या वो प्रेजेंट कर लूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा सर वो कर. उसमें काफी चीजें समझ नहीं आई, इसके लिए हाँ मैंने कर. लिख तो दिया. ठीक है. हाँ बोलो मीर. हाँ तो सर उसमें था कि इंडिया के जो मेजर बड़े सिटीज है ना, उसमें उनके कुछ कुछ एरियाज के जो रियल एस्टेट के पर स्क्वायर फुट प्राइस है वो नियरली 50% तक डाउन हो चुके हैं, जैसे वर्ली मुंबई में, फिर सेक्टर 63 इन गुड़गांव. तो ये सारे इसके रियल एस्टेट प्राइसेस डाउन हो चुके हैं. उसमें एनालिसिस में लिखा था कि बिल्डर्स आर नाउ शिफ्टिंग देयर फोकस ऑन स्मॉलर टिकट साइज फ्लैट्स. तो वो लोग जो है फ्लैट्स का साइज पर स्क्वायर फुट मतलब ऑन टोटल वो कम कर रहे हैं इसके वजह से. तो सर इसके वजह से ये पर स्क्वायर फुट का प्राइस क्यों गिर रहा है, वो मेरे को समझा नहीं. इसकी वजह से क्या कर रहा है? पर स्क्वायर फुट का प्राइस गिर रहा है. नहीं, तुमने लिखा है कि शार्प डिक्लाइन अप टू 50% इन माइक्रो मार्केट ना, ऑफ मेजर सिटीज. हाँ हाँ. तो जैसे यार मुंबई में वर्ली है, फिर ये गुड़गांव का एक पार्ट है, सेक्टर 63, इस तरह से ये सारे जगहों पे गिरे हैं प्राइसेस. तुम कहाँ से हो मीर? गुजरात से हूँ सर. अच्छा ओके. तो व्हाट हैपेंड ना, व्हाट आई सी इन मुंबई, पुणे, हैदराबाद, आई ट्रैवल, देयर इज लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हिच आर गोइंग ऑन. ठीक है. सप्लाई इज ह्यूज एंड नाउ लोगों को ना घर नहीं लेना है. मतलब एक घर हो गया बस हो गया. तुमको और कितने घर लोगे? अभी ना घर कौन ले रहा है इंडिया में? आइदर द लग्जरी गाइस, मतलब द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और द वन हु आर स्टार्टिंग देयर लाइफ. जो नए नए, तुम अभी जैसे तुम हो, यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू बाय अ हाउस इन अ सिटी लाइक मुंबई. पॉसिबल ही नहीं है, इतना महंगा हो गया. तो तुम गुजरात से आते हो, तुम पहले बोला कि सर मुझे कम से कम 20-25 लाख का सैलरी चाहिए जस्ट टू सर्वाइव इन मुंबई. 20-25 लाख के सैलरी में अगर तुम 1 लाख रुपया सिर्फ ईएमआई भरते हो, तो बाकी का खर्चा कहाँ से उठाओगे? फैमिली है तो सोचो. मतलब तुम जब तक 30 लाख नहीं कमा रहे इंडिया मुंबई में, तो यू कैन नॉट अफोर्ड एन हाउस. तो ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ द हाई इंक्रीज इन प्राइस. डिमांड इज डिक्लाइनिंग एंड माइक्रो मार्केट्स, नॉट एवरी मार्केट. लग्जरी तो ग्रो रहा है. वर्ली में देयर आर पॉकेट्स, बट तुम अगर वर्ली के टॉप देखो, लग्जरी प्रोडक्ट सब फुल हो गए. वो डीएलएफ का था ना, उस दिन लॉन्च किया मुंबई में, एवरीथिंग इज बुक्ड. तो ऐसा हो रहा है. तो ये जो है ना सेगमेंट 1 से 2 करोड़ या 3 करोड़ के बीच, यहाँ पे पीपल आर स्ट्रगलिंग. लोगों के पास पैसा नहीं है एंड सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ गया है. वही रेंज में, क्योंकि मुंबई में प्राइसेस इतने हाँ हो चुके हैं. आई वॉज इन पुणे yesterday ओनली. वन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स बॉट अ हाउस. उसने ना 79 lakhs में कुछ 2 BHK लिया था पुणे में कोई एरिया में. एंड वहां के बिल्डर ने ना उसका 10th 11th 12th फ्लोर खाली रखा था. 4-5 साल हुए बिल्डिंग को. मतलब क्यों खाली रखा है? नहीं, उसको ना हायर प्राइस पे बेचना है. मतलब ये क्या बात हुई? तो हाँ, उसको अभी ये प्राइस पे नहीं बेचना है. ही सिंग है, यहाँ पे रोड होगा, ऐसा डेवलपमेंट होगा, ये होगा. तो सोचो, मतलब एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में भी फ्लैट्स खाली है. सर वो आज शोभा का भी था ना, दे हैव मींस इन असेट साइड दे हैव 13,000 crores अनसोल्ड इन्वेंटरी एंड दे आर इन्वेंट्री है. आल्सो लॉन्चिंग अ न्यू प्रोजेक्ट्स वर्थ ऑफ 15-20,000 crores. सर वो भी पुणे मैंने में मेंशन किया था मैंने भी न्यूज में. न्यूज़ पढ़ा था, पुणे में एक इशू हुआ है, जैसे कि जो आईटी सेक्टर का ले ऑफ हो रहा है ना, जैसे इन्फोसिस है, विप्रोज है, जो बड़े बड़े जाइंट्स है आईटी में, तो उनको वजह से ना जो घर खरीदने वाले थे वो अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे. अफोर्ड नहीं इसके कर वजह पा से रहे. एक आर्टिकल था कि वो रियल एस्टेट 20% से गिरने वाला है इन पुणे सिटी मोस्टली. यस. ठीक है. वो तो आई विल से सप्लाई काफी बढ़े. मतलब मुझे तो दिख रहा है. मतलब आई गो क्रेजी व्हेन आई ट्रैवल मुंबई पुणे. मैं बोलता हूँ कि रियल एस्टेट से दूर ही रहो. रियल एस्टेट रिलेटेड जो भी सेक्टर है उससे दूर रहो. बट टाइल से सप्लाई दूर बढ़ रहना. रहा है, लेकिन मोस्टली कैसा है, होल्डिंग हो रही है. मतलब कैसा है कि सप्लाई बढ़ेगी, लैंड भी इंडिया में तो बहुत है. यू ट्रैक डिवाइड द पीपल विद नंबर ऑफ लैंड अवेलेबल, तो लैंड भी बहुत है. बट कैसा हो रहा है कि जो एनआरआई है या हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स है या कोई ट्रस्ट है, तो वो लोग ज्यादा फ्लैट्स एंड ज्यादा लैंड परचेज कर लेते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, टू रेंट इट आउट. एंड तो उसके लिए फिर जो जिनको घर चाहिए रहता है टू लिव, उनके पास मतलब उनको फिर महंगा पड़ता है. द महंगा पीपल पड़ता लाइक है. एनआरआई जिनके पास ज्यादा बहुत पैसा है, तो वो इन्वेस्ट के पर्पज से पूरी पूरी लैंड और पूरे पूरे फ्लैट्स खरीद लेते हैं. अभी मुंबई में भी बोरीवली में देखा है मैंने कि वहां पे मतलब कितने मेरे रिलेटिव्स है बोरीवली वेस्ट में ही, उनको
मुझे याद नहीं आ रहा है, इंद्रप्रस्थ था या कोई एरिया याद नहीं आ रहा है मुझे, तो वो वहां पे देखने गए तो बोल रहे थे कि नया बिल्डिंग बन रहा है, मोस्टली फ्लैट्स है वो एनआरआई ने लिए हुए हैं, तो ये यस यस इसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है। बाकी ऐसा नहीं कि लोगों के मतलब घर खरीदने के लिए पैसा इसके लिए नहीं लोगों के पास रहता है। तो वो ये तो माइक्रो तो बाकी अभी कैसा है, दे विल एनआरआईज विल बाय फ्लैट्स इन अ डेवलप्ड सिटी, वो जाके भी विरार में नहीं फ्लैट लेगा, ऐसा है। सो बट वन थिंग, जैसे बोलते हैं कि ट्रेडिशनल, आई मीन वो जो बोलते हैं ना, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट इनटू डेट एंड इक्विटी, बट इंडियन माइंडसेट इज स्टिल दैट ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इज इनटू रियल एस्टेट. Correct. They consider traditional investment into real estate because they don't know about equity and debt products. और Yes. वो लोग के लिए बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट लेवल का अंडरस्टैंडिंग में भी रहता है, और मतलब दे आर नॉट मच फेमिलियर विद दैट. Yes, yes. तो इंडिया में Okay. ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर बोलेंगे तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इज डेफिनेटली इनटू रियल एस्टेट. इफ एनीबडी हैव एनी एम्पल ऑफ मनी दे विल डेफिनेटली गो इनटू रियल एस्टेट. Real estate, yeah. सो And मुझे लगता है उसकी वजह से भी रियल एस्टेट में रिटर्न्स वगैरह थोड़े कम आते हैं, yes, because अभी तो because क्या, it's a go to option for everybody. yes, अरे तो Anybody who have रियल any एस्टेट में तो sort of मतलब money, पैसा they just पड़ा want to रहता है park ना। their money, they'll go into real estate. correct. Yeah. So मुझे रियल एक ये एस्टेट में भी तो पूछना था पैसा आपसे. रहता है, बिजनेस में तो पैसे घूम के उससे कैश जनरेट करते हैं ना, रियल एस्टेट में तो बस पैसा है जस्ट, वो तो स्पेक्युलेटिव हो गया ना। I just mentioned that if anybody have money and they want to park their money, real estate they'll definitely go for that. Yeah, that is Indian mindset, correct. मेरे भी इंडियन छोड़ो, मेरे घर पे भी ये चल रहा है, तब सोचो मैं भी बोल के थक गया उनको। ऑल्सो एक they ये भी think चीज that रहती है कि अगर कोई बहुत बड़ा ट्रस्ट है या बहुत ही बड़े मतलब लाइक अंबानी अदानी जो रिच फैमिलीज है, तो मोस्ट ऑफ द जो उनका ब्लैक मनी है, पॉलिटिशियंस है जिनका मतलब ट्रिलियंस ऑफ आईएनआर में ब्लैक मनी है, तो दे पार्क इट इन लैंड ओनली, मतलब वकाफ बोर्ड है या जो वो तो शुभम, बिग let's not take away the topics, वो सब चीजों पे, फाइनेंस पे आते हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात हो रही है। तो वो उनको क्या करना है, पैसा कहाँ पे आ रहा है, लग्जरी में, उनका पैसा भी किधर आएगा, लग्जरी अपार्टमेंट में। वो लोग जाके यस विरार यस पे फ्लैट नहीं खरीदने वाले, करेक्ट, अंबानी जाके। यस सो ये लग्जरी का सेगमेंट तो है ही है, हम बात कर रहे हैं, हम आज क्या बात कर रहे हैं, हमारे टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में अगर हो रहा है तो मिडिल क्लास में ग्रोथ, सप्लाई बराबर नहीं होगा, इतने लोग बाय कर रहे हैं तो कभी ग्रोथ नहीं आने वाला उसमें। एंड अभी सप्लाई इतना बढ़ गया है तो नॉर्मल एनआरआईज बाय कर रहे हैं, बट जो सच में अफोर्डेबल, जैसे जिनका 10-15 लाख या सॉरी 10 लाख सैलरी है, दे कैन नॉट अफोर्ड इन इंडिया, अफोर्ड इन मुंबई। ओके guys, और एक न्यूज था ऑन द लास्ट न्यूज, सिद्धार्थ का है। सिद्धार्थ, एनीथिंग ऑन द ऑटोज? सिद्धांत? Yes, Yeah, Siddhant. good afternoon. Good afternoon. Anything on the autos you have written? तुम्हारा news क्या है? Sir, two-wheeler sales in October surged to 43%, sir, month on month. So mainly Hero MotoCorp contribute with 30% of total sales, and then Honda motorcycle close with 27%. Then TVS Motor 18%, Bajaj Auto 12%, Suzuki and Royal Enfield at 5% each, Yamaha Motors 3%, sir. So overall, due to GST cut, two-wheeler demand boosted and sharp growth in bookings. बट ये तो पुरानी न्यूज है ना सिद्धांत, इसमें क्या नया है? सर ये अक्टूबर मंथ का है। तो खत्म किधर हुआ उधर? अक्टूबर, अच्छा इन अक्टूबर, ओके फाइन, लेड बाय टू व्हीलर मार्केट्स 30% रजिस्ट्रेशन, ओके, रिटेल सेल्स आया ये, ओके, ओवरऑल जीएसटी बूस्टेड द टू व्हीलर डिमांड। अच्छा गाइस, नाउ ये जो हम रिटेल की टियर 2 टियर 3 की बात कर रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प के सेल्स इंक्रीज होगा 30% से। कितने हैं यहाँ पे जिसने हीरो के बाइक ली है, देखा है तुम्हारे सिटी में कि हीरो की बाइक ली है तुम्हारे कोई फ्रेंड्स? नहीं है सर। तो पता है किधर ली होगी बाइक्स? ये सर रूरल एरिया, सर टियर 2 टियर 3 सिटीज, करेक्ट, टियर 2 टियर 3 सिटीज। तो डिमांड वहां से ही आ रही है, अर्बन में कोई हीरो का बाइक नहीं लेता। यस, मतलब लिस्ट में भी नहीं होता, हम देखते हैं ना कि 4 बाइक लेने हैं, लिस्ट में भी नहीं होता हीरो का बाइक। सर मोस्टली यूज फॉर डिलीवरी। मेरे यहाँ पे काफी जो विडा है, जो हीरो का बाइक है, उसका काफी हाँ, सेल हो रहा है। पहले सबसे सेल बढ़ा पहले है, वो चेतक का हो रहा था, ये तक और अभी जो उन्होंने जो बैटरी चेंज भी कर सकते हो, एक बैटरी आप घर पे चार्ज करके
एक्सचेंज कर सकते हो, वो स्कीम से वो ज्यादा हीरो पे जा रहे हैं। यस यस सर करेक्ट पहले जो हीरो वगैरह मतलब ये सब जो चीप प्रोडक्ट्स है, इन लोग की जो बायर लोग जो रहते होंगे इन अर्बन सिटीज, अभी वो रिप्लेसमेंट उसका आ गया ना, वो रेंटल ई बाइक। तो जो डिलीवरी पार्टनर्स लोग जो रहते हैं, मतलब डिलीवरी बॉय लोग जो रहते हैं, उन लोग तो हीरो वगैरह जो पहले लेने वाले रहते होंगे, हीरो है, एक्टिवा है, एक्सेस वगैरह, मतलब ये सब जो स्कूटर्स है, उन लोग तो ये क्या सेल डाउन जाके तब उसका ग्रोथ ज्यादा बढ़ रहा है ना, बिकॉज ऑल ऑफ द डिलीवरी बॉय आर करंटली यूजिंग दोस थिंग्स। यस यस करेक्ट सो इसका तो सर इम्पैक्ट आएगा ना सर ये चीज के ऊपर। तो वही ना, हेलो सर। ये ना आई विल से अहमद, ये हीरो का ना ग्रोथ अर्बन से आ ही नहीं रहा है। अर्बन में हीरो के बाइक लेते ही नहीं है कोई। रूरल इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर हीरो। तो इतने अच्छा। टाइम में रूरल में डिमांड, क्योंकि अर्बन में देखो, तुम देखो तुम्हारे बिल्डिंग में भी देखो किसके पास हीरो का बाइक है, किसी के पास भी नहीं होगा। और नया तो सर नहीं बट होगा, होगा तो पुराना। हेलो हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि बाइक नहीं ले रहे, पर सर उनकी जो स्कूटर्स है, स्कूटी है, वो भी तो उनकी डिमांड तो ज्यादा है ना सिटीज में। तो हाँ, होंडा पर वीडा ज्यादा। किधर दिखती बाइक है? के अलावा वीडा तो बाइक इलेक्ट्रिक के हो गए अलावा। ना। इलेक्ट्रिक गाइस, हम्म। इसके लिए बोलता हूँ ना, थोड़ा रिसर्च किया करो। हीरो कितना बिकता है वीडा? हीरो के टोटल सेल्स कितने हैं? 6 लाख। नो सर, हाँ, स्कूटी एक सर, सेकंड स्कूटी एक बोल रहा हूँ मैं सेकंड जो। एक सेकंड आकाश। हाँ हाँ हीरो के टोटल हाँ। सेल्स आर 6 lakhs। उसमें से 15,000 वीडा बिकता है वो यस सिर्फ। सर। वो डबल भी हो गया तो कुछ फर्क पड़ने वाला है ओके हीरो सर। पे, इम्पैक्ट उसके इस पे। और 30% से अगर सेल्स ग्रो हुआ है तो कहाँ पे हुआ होगा वो ग्रोथ? वीडा का सेल्स ग्रो हुआ होगा? टीयर 2 3। ऑब्वियसली नॉट। इट इज बिकॉज दैट इज वाई मैं तुमको बोलता हूँ ऑटोमोबाइल का ना ऐसा नंबर्स रट के रखना दिमाग में। बिकॉज दिस ये सब नंबर्स तुमको इंडस्ट्री में बना, ऐसे तुम रैंडमली कुछ भी बोलते हो ना, इसके वजह से रिजेक्ट हो जाता है इंटरव्यू में कि सर ऐसा हो गया, इधर भी बेचता है, इधर इधर। अभी 10%, 1% भी नहीं आता उसका सेल्स वीडा से, तो तुम बोल रहे हो सर उसके वजह से हीरो का ग्रोथ हो रहा है। स्कूटर्स में द टॉप प्रोडक्ट इज होंडा एंड टीवीएस। हीरो थोड़ी स्कूटर्स बनाता है, वो भी नहीं पता होगा तुमको प्रोडक्ट्स कितने कितने स्कूटर्स बनाता है। तो इसके लिए वो मैं बोलता हूँ ना, ये रिसर्च सिर्फ इट इज नॉट अबाउट बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लोज, सब चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि हम रैंडमली बोलते हैं सर ये ग्रोथ हो रहा है, वो ग्रोथ हो रहा है। आई स्पेसिफिकली टॉक सिद्धार्थ टू टॉक अबाउट, क्योंकि हीरो का मैंने ये इसके जानबूझ के लास्ट में न्यूज रखा कि जो ग्रोथ हो रहा है फॉर 30% ग्रोथ हीरो का, प्रॉब्ली रूरल से ही आ रहा है, अर्बन में है ही नहीं उसका डिमांड। हम सब अर्बन में रहते हैं, मेजोरिटी ऑफ लोग। किसके पास है? किसने देखा है अपने बिल्डिंग में किसी नई हीरो लेते हुए? कोई नहीं है। एनवीडा का ठीक है वो ग्रो हो रहा है, वो तो छोटा पोर्शन है एक उसके पूरे पोर्टफोलियो में। 15,000 भी नहीं बिकता होगा, आई एम नॉट श्योर कितना बिकता है वीडा। छह क्या हजार के तुमको आसपास। आकाश कितना बिकता है वीडा? 6,000 के आसपास। 6,000 बिकता है, हाँ। फिर क्या बात कर रहे हो आकाश, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सर स्कूटर्स बिक रहा है, इज नथिंग, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। इसके लिए वो बोल रहा हूँ, ऑटो सेक्टर सबको मैंने टास्क दिया है। तुमने बनाया आकाश ऑटो पे नंबर्स? नहीं। गिवन एवरीवन, वीडियोस भी रखे हैं, गो एंड फाइंड, क्योंकि ये सब चीजें इंटरव्यूज में काम आती है। सर हाँ सर। सर एक और न्यूज था इसमें, जो धनतेरस और फेस्टिव सीजन के सेल्स में, कि मारुति के जो स्मॉल कार सेगमेंट में 29% सेल की उसने ओवरऑल। ओ ग्रेट। और सर ये स्मॉल कार में मिनी एंड कॉम्पैक्ट को बोल रहा है ना? हैचबैक भी बोलते हैं स्मॉल कार से लोग, हैचबैक भी स्मॉल भी, वो शायद से बलेनो को ना वो लोग अलग प्रीमियम कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। ओके सर, पर हाँ, क्योंकि न्यूज में स्मॉल कार करके था, और जब पहले अगर Q1 का रिपोर्ट देखेंगे, मिनी और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में उनका शेयर था 45%। अगर स्मॉल कार कंसीडर करेंगे, ये 29% सेल किए, तो कम हो गया उनका स्मॉल कार का नहीं, सेल। 29% ग्रोथ हुआ है ना, और वो 45% तुम बोल रहे हो, दैट इज द मार्केट, मतलब ओवरऑल पोर्टफोलियो में 45% उसका स्मॉल कार से आता है, एंड दैट पोर्टफोलियो हैज इंक्रीज बाय 30%। 29% ये हो गया है, तो इट्स अ सर गुड साइन। नहीं, वो सेल किए 29% स्मॉल कार, मतलब ओवरऑल सेल किए हैं 325 के कार्स, उसमें से 29% स्मॉल कार सेल किए। अच्छा ओके। हाँ तो स्मॉल कार्स उस पे ना कॉम्पैक्ट में वो लोग प्रीमियम भी लेते हैं फिर। ओके। वो उसमें क्योंकि मारुति जो नंबर है उसमें प्रीमियम भी आता है, और ये लोग ये स्मॉल कार्स में ना दे ओनली टॉक अबाउट एस्प्रेसो, वैगनआर, ऑल्टो, ऐसा है। ओके। वो आगे की बात नहीं करते। ओके गॉट। ऐसा है।
Okay, guys, I think it's late. We will सर stop. एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर स्पेशलिटी रिटेल जो ये ट्रेंड है और नायका वो सब है उसको वो और कंपेयर में ये टूरिज्म होटल्स बिजनेस है, ये दोनों में से कोई एक सेक्टर लेना रहेगा तो कौन सा लेना चाहिए? सॉरी कम अगेन, सॉरी मैं मिस हो गया। एक स्पेशलिटी रिटेल वर्सेस द होटल एंड टूरिज्म बिजनेस, तो ये दोनों के मतलब में से एक अगर चूज करना है तो कौन सा चूज करना चाहिए सेक्टर होटल फॉर इज एनालिसिस? बेटर। होटल स्पेशलिटी में क्या प्रॉब्लम है, वो सब लॉस मेकिंग कंपनीज है उसमें। अच्छा नायका वो सब, हाँ नायका लॉस मेकिंग है। सब लॉस मेकिंग है और वो सब एक्सपेंशन फेज में है, मतलब एकदम क्रेजी एक्सपेंशन फेज में वो लोग। ऐसा है, देखने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट होटल आर प्रेफर्ड। ओके, कॉज इंटरव्यू में प्रेजेंट करना है तो वो वैसा हाँ सेक्टर होना चाहिए ना, समझ में भी आए एंड वी कैन हाँ प्रेजेंट इट, बराबर। एंड लॉस में भी नहीं होना चाहिए कि वहां जाके फिर। लॉस में होगा तो पहले वो रिजेक्ट कर देगा तुमको, क्या लॉस मेकिंग कंपनीज क्या लेके आ रहे हो तुम, जेंजी मत बनो। जेंजी मत बनो। अच्छा ओके सर, ओके ओके थैंक यू। ओके गाइस, ओके थैंक यू सो मच। सर मैंने आपको मॉडल सेंड किया है। हाँ सुरेश, देखता हूँ मैं। ओके सर। ओके थैंक यू। हेलो हेलो हाँ किरण। सर, मैंने एक आपको एक तो रिपोर्ट बना के भेजा है ये ऑटोमोबाइल पे, तो थोड़ा एक ग्लांस कर देंगे आप? हेलो 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 सॉरी सॉरी किरण, शाम को प्रेजेंट करोगे तुम? हेलो। ठीक है चलेगा। पर किधर है, तुमने रिपोर्ट तो मुझे नहीं मिला किरण। तो मैंने भेजा है यार, इतनी रसीद ऑटोमोबाइल का? ऑटोमोबाइल का? हाँ ऑटोमोबाइल, यस मंथ ऑफ अगस्त है, सॉरी सितंबर। 16 सितंबर वाला, ओके ठीक है। अभी तो वापस बनेगा ना किरण, सो व्हाट यू कैन डू, अच्छा लग रहा है हाँ मतलब। हाँ तो अभी जो वापस बनेगा ना फर्स्ट को, तभी फिर प्रेजेंट करना, ठीक है? लुक्स गुड। हाँ वही मतलब देखा मेरे था को मैंने बनाया वो। तो है, बट इसमें कुछ चेंज हाँ हाँ सॉरी सॉरी सर। लुक्स गुड, लुक्स गुड, थोड़ा और चाहिए तो लिख सकते हो। ओके फाइन, मतलब अच्छा है। कोई प्रेजेंट जब तक नहीं करता तो आई विल नॉट गेट अ, तुमने क्या लिखा है, बट मैंने बोला पैराग्राफ में लिखो, पैराग्राफ में लिखो तो इट विल हेल्प। ओके ओके यार ऋषिकेश। हाँ Yes, sir. Can we connect post this call? I have still now. What happened? No, sir, as this was my first class today. Mm-hmm. So just needed a little bit clarity ki, like in what direction should I move in and how should I go through, get along with this, the pace which these people are, because This is not, so no, this is not a pace. This is, everyone is at different level. Even I am at, I yeah, don't know. because the communication which you are having with all the other candidates, I think so that they are not, like this is not their first class. They are somewhere there in the between. So that's why I just wanted. No, this is not a class. I will say this is not a class. Every day we learn something new. Okay. Okay. This Monday to Friday now, it is just about interaction. You read newspapers and come what you have read. That's it. Okay. Come to the class. There is nothing Monday to Friday. There is nothing I teach. It is Okay, it's just a normal news sharing. News sharing. No, हाँ, मतलब if I am your fund manager, you come to me in the morning. What are you want to talk on? That's it. Yeah. And then we just link things. With the time, we just try to link things. Okay. Okay. Got it. So the, like you mentioned few sectors on the Excel, I have noted it down. So I will be tracking those sectors, right? Yes, yes. There is a, see on the 14th group, there is one video, newsletter writing. Okay. This one. In the description, okay. Yeah, The description, newsletter writing. This is what is the morning call. What we do. The same thing. You have to send me a news. See, this guys always send me some news. See, newsletters. Do you recommend any kind of newspaper for the genuine news? So just go through this video. I have mentioned everything there. Okay. It's in the group description. Just go through that. 14 in this, just go through this video. The first one I've mentioned everything, where you get the news, how to write it, how to present it. And recently I shared this in the group, tips to write newsletters.
This is how you write. This is how your Okay. mindset should be. Okay. And I'm posting it. Just go through this session once. It is on YouTube. You can, watch it at 1x speed. And then every day, this guys send me newsletter. So I've labeled this. See, now this guy or this girl has written a newsletter on the link. So this is how you have to write and then post on LinkedIn. Okay. So that it makes an habit of you saying, when you say, you're interested in something, proof on a daily basis that you're interested. What you do, let's say you said, sir, I read newspaper. What is the proof? So see, I've written an article. So how to write this all, paragraph, heading, paragraph. This is I've mentioned in the video. Okay. If you are free today, go through the video and just tomorrow try writing a news and send it to me. And then we will, see that how are you improving on it. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Don't assume that this is a class that others are knowing. No, everyone is at the same level. Got it, sir. Okay. Correct. Hello, sir.